Samvad, where ideas come to life. Before we dive into the enlightening conversations, let's commence our gathering with the lamp lighting ceremony, the illumination of wisdom and knowledge. So, requesting Dr. B.F. Jogi, our newly appointed registrar. Thank you so much. Now let's explore the essence of Samvad. What is Samvad? Okay, I will explain. Samvad is a talk show hosted by ESL ICT Mumbai. Here we invite well-known speakers to interact with our students. We give our students a chance to interact with well-known influencers. Some of our previous speakers include Acharya Prashant, Sindhutai Sapkar, Nitin Gadkari, Subramanyam Swamy, and many others. Samvad focuses on clearing the basic queries in business-related field a budding entrepreneur might have. So that is Samvad. Okay, then you can continue. Without further ado, let me introduce our distinguished speakers who will guide us through this intellectual journey. So we have Mr. Abhishek Kar, please. And CA Mahima. I would request our newly appointed registrar, Dr. B.F. Jogi, to address them. Thank you very much. Honorable Vice Chancellor in his absentia, and all deans, HODs, faculty members. First of all, my beloved students, I welcome you all for the program Samvad. As your friend told that, Samvad is basically a Marathi word. Samvad. I think you may be familiar. Number of students known about the Marathi, or all are familiar about the Marathi. Samvad, or you can say that communication is advanced version. Samvad means if you express your feelings, your experience with your friends, with your younger ones, elder ones, definitely you will gain the knowledge. And I am quite fortunate that today is my second day, and I am here to your Samvad 2.0. And it is also, you all are fortunate that today's great speaker, Abhishek Kar, he is an investor, as well as he invests in the startup, guide the startup industries. And at the same time, he is an author, business mentor. Means definitely the talk is related to the entrepreneurship, and you will get the knowledge as well as experience, and definitely the word Samvad get fulfilled. Second speaker is CA Mahima Vacharajani. As I have explained, CA, Chartered Accountant, means definitely without finance nothing will happen. And she is with us to guide us, to give us the additional experience. And one important thing, she is also a content creator related to the business, journals, and finance guidance purpose. During the Samvad program, she was invited by our team members, and I appeal to you all that you will definitely enjoy the talks of both the speakers and gain the lot of knowledge, and definitely it will be fruitful for your future work. Thank you. Now requesting our registrar to honor both of our speakers with a sapling. Without further ado, let me introduce you all to Mr. Abhishek Kar. He's a famous speaker and is about to touch 1 million followers on YouTube. He's also author of the book Stocks and Life, which was one of the
Amazon hot sellers. He has featured in video series of Economic Times, famous business dailies like Money Control, ET, etc. With a whopping number of 594K followers on Instagram, he's one of the most followed writers globally on the subject of finance markets and stock markets. A cheer and round of applause for Mr. Abhishek Kar to share his insights. Good evening, everyone. आवाज़ ऑलमोस्ट गायब है सबकी. I can understand. It's a hectic day after the entire session throughout the day, and also the faculty don't allow कि आप बंक कर सकते हो, तो बड़ा दुख होता है. But एक और बार ट्राई करते हैं. Even I had an hectic day right from the morning. But this is a part and parcel of life. Specifically आप मुंबईकर अगर हैं, how many of you मुंबईकर जैसे who? अच्छा. How? So even if you are not a Mumbaikar, you should get habitual of a hectic life, because जीवन एक बार शुरू होता है, ये रुकता नहीं है. The biggest lollipop is given by your parents itself, कि बेटा 9 से 5 की नौकरी करनी है. नहीं होती है 9 से 5. Anybody who is doing a job clearly knows that no job in this universe is to 9 to 5. It is always 9 to 9, because you are going to start your job. In fact, it could be 7 to 9, because you are going to start from दादर, फिर लोकल के धक्के खाने हैं, फिर उसके बाद दूसरा लोकल पकड़ना है, फिर बस पकड़नी है, फिर बॉस की गाली सुननी है, फिर बॉस एक्स्ट्रा काम देगा. तो you need to understand that this thing is going to extend. Agreed? Yes or no? Yes. I'm very cognizant about this fact that most meaningful conversations have to be dialogues. तो I would be expecting कि सब आप लोग हाँ ना yes no चलेगा. Yes or no? Yes. Amazing. सीधे मुद्दे पे आते हैं. Let's straight come to the point. And in between I am speaking in English. Otherwise भारत में जज कर लेते कि इसको अंग्रेजी नहीं आती है. आती है. 4 TEDx दिए हैं, सारे इंग्लिश में दिए हैं. So ये थोड़ा सा फ्लॉन्ट भी कर दिया है. So I would be expecting each one of us participate, and usually my nature is very blunt, because of which a lot of people feel offended. और इंडिया में तो ऑफेंस फील करना तो भैया हमारा हक है ना. बिल्कुल. हमारे कोर्ट में जितने जज नहीं उससे ज़्यादा हम लोग जज बने पड़े. अरे वो पड़ोसी को देखा, लड़कियाँ इज़ लाइक उसने साड़ी कैसी पहनी, उससे अच्छी तो हमारी है. सो वी ऑल पास जजमेंट. येस और नो? सो मुझ पे कम करना पास. ठीक है. So let's talk about entrepreneurship, because broadly we are over here to understand about entrepreneurship. Just be honest, how many of you want to start up a business? Just say yes. Yes. How many of you want to start a business just after your college? Just say yes. Yes. Okay, so many people. Just raise your hands. How many of you said want to start a business? Okay, ये इधर फोटो ले लेना इन सबकी. फैक्ट बता रहा हूँ, गिनती के इनमें से 2 जन होंगे जो करेंगे अल्टीमेटली. बिकॉज वॉट इज गोइंग टू हैपन इज अल्टीमेटली घर वाले बोलने वाले हैं अरे प्लेसमेंट पे तो बैठ जाओ, 2 साल बाद कर लेना. देन यू विल गेट इन टू द प्लेसमेंट ड्राइव. फिर उसके बाद पैकेज का लड़ाई शुरू हो जाएगा. फिर उसके बाद आपको पहला सच पता चलेगा CTC के बारे में. कॉस्ट टू कंपनी अलग होती है, इन हैंड अलग होती है. फिर उसके बाद आपको एक दुनिया की बहुत ही खतरनाक वाली चीज़ पता लगेगी कि टैक्स भी भरना पड़ता है. और फिर आपके वो 2 साल का 5 साल 6 साल 8 साल. आई एम नॉट ट्राइंग टू डीमोटिवेट, बट दिस इज द हार्श रियलिटी. इट्स हाई टाइम दैट वी शुड फेस द रियलिटी. बट आप में से कितने लोग प्रभावित है बाय मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स? जस्ट से यस, है ना. ड्रॉप आउट्स थे, आप लोग मत हो जाना वरना सर, है ना. तो ड्रॉप आउट्स थे, काफ़ी अच्छे थे. द वेरी फर्स्ट इंफॉर्मेशन विच आई नीड टू पास, आई एम जस्ट बीइंग स्ट्रेट, देयर इज अ लॉट ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इंडिया. US में 12 साल के बच्चे को लात मार के घर वाले बोलते जाओ अपने पैर पे खड़े हो, डू ऑड जॉब्स, डू मल्टीपल थिंग्स. और हमारे देश की एक खासियत भी है, कल्चरल एडवांटेज भी ये है, दैट आवर पेरेंट्स इवन आफ्टर योर मैरिज, आपके बच्चे भी हो जाएंगे, बच्चों के बच्चे भी हो जाएंगे, तब तक भी आपको साथ में रखेंगे. बिलीव नहीं होता तो हमारे देश के रिचेस्ट इंसान को देख लो, है कि नहीं. अरे हंसने की बात नहीं है, सच बात है यार. तो कल्चरल डिफरेंस आपको पहले समझना पड़ेगा. आप इधर बोलोगे कि नहीं मैं अभी 12 साल की उम्र में मैं रिस्क लूंगा, मैं बना लूंगा. यू नीड टू अंडरस्टैंड, US की अगर बात करें तो सिलिकॉन वैली स्टार्टेड अर्लियर. द अमाउंट ऑफ फंडिंग विच वॉज बीइंग प्रोवाइडेड ओवर देयर वाज क्वाइट डिस्टिंक्ट. हमारे इधर पे जब पोस्टर बॉयज हुए, वी आर टॉकिंग अबाउट सचिन बंसल, बिनी बंसल, दे वर द फर्स्ट वंस टू एक्चुअली कम इन टू द सर्कल एंड देन एक्सप्लोर ऑल दीज प्लेसेस. तब जाके लोगों को अब दिमाग आया है. That is when we have reached today, जहाँ पर एटलीस्ट एक 14-year-old सोचता है कि मैं एक बिजनेस चालू कर दूँ.
एग्रीड, यस और नो? सो द वेरी फर्स्ट थिंग, लेट्स एक्सेप्ट एक कल्चरल डिफरेंस है, बिकॉज ऑफ विच आप यूएस से कुछ नहीं तो एटलीस्ट 3-4 साल बाद चालू करने वाले हो. नीड नॉट टू वरी, कोई लेट नहीं हुआ है. 3-4 साल बाद भी अगर आप चालू करते हो विथ सम अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी, इट इज स्टिल बेटर. सो द फर्स्ट पॉइंट यू गॉट टू अंडरस्टैंड इज कि आपको आपके कंफर्ट जोन से अगर निकलने लेट मिला हुआ है तो आपको जो रेट ऑफ सक्सेस रहता है वो थोड़ा सा यूएस वालों के साथ कंपेयर करना बंद करना पड़ेगा. इज इट क्लियर? यस और नो? द फर्स्ट फैक्ट. द सेकेंड फैक्ट यू गॉट टू अंडरस्टैंड इज, आजकल ना ये हर जगह चला हुआ है, बिना फंडिंग के हम बिजनेस चालू नहीं कर सकते. वी नीड एक्सटर्नल फंडिंग. हर बंदा आके मेरे को बोलता है सर 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 मेरे पास बहुत तगड़ा आइडिया है, बस इन्वेस्टर चाहिए. द पॉइंट इज, द वेरी फर्स्ट थिंग इंस्टेड ऑफ लुकिंग एफ एन इन्वेस्टर, आपको क्या करना चाहिए जानना है? जानना है? पहली चीज है, एक प्रोडक्ट बनाओ या सर्विस बनाओ और अपने बेस्ट फ्रेंड को पहले वो बेचो. क्योंकि बेस्ट फ्रेंड इस चीज में आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है. वो ये बोलेगा अरे क्या बनाया भाई, तू अगला अंबानी है, अंबानी छोड़ तू अडानी है. नहीं, कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया. तू जो भी है, तू इलॉन मस्क है. सीधे पूछना है, खरीदेगा? पैसे दे. दैट इज वेर यू विल रियलाइज रियली योर प्रोडक्ट वॉज गुड और दीज पीपल वर फ्लैटरिंग. हमारे दुनिया में दो ऐसे लोग होते हैं जो आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी आपको बहुत अच्छा बोलेंगे. एक आपका बेस्ट फ्रेंड और एक आपकी माँ. हर माँ को अपना बेटा शाहरुख खान से कम नहीं लगता. बट हम जब अपने आप को आईने में देखते हैं तब पता लगता है हाँ थोड़ा सा कमी है, थोड़े बहुत मम्मी सही बोल रही है, थोड़ी सी कमी है. तो यू गॉट टू अंडरस्टैंड द वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज यू हैव टू नॉट जस्ट आस्क योर बेस्ट फ्रेंड, नॉट जस्ट फॉर फीडबैक, यू हैव टू सेल दैट प्रोडक्ट. और जिन लोगों को लगता है कि फंडिंग के बिना नहीं चल सकते, लेट मी गिव यू अ नेशनल एग्जांपल. ज़ेरोधा कितने लोगों ने नाम सुना है? जस्ट से यस. बिलियनर्स हैं दोनों फाउंडर्स. बूटस्ट्रैप्ड है. बूटस्ट्रैप्ड इज समथिंग व्हिच नेवर हैव टेकन लोन्स, who have just done all by their own. Am I saying कि आपको कभी फंडिंग नहीं उठानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल उसके फायदे हैं, बट सिर्फ पैसे के पीछे इस हिसाब से मत भागो. थिंक फ्रॉम अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप. आप ऐसे सोचो कि आज मार्केट में लिक्विडिटी काफ़ी है. आज अगर पैसे लेने जाओगे तो अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, आप बिलीव नहीं करोगे, शहर वालों से ज़्यादा ना गाँव में जो ज़मींदार है ना उनके पास पैसा है. वो बात अलग है कैश में. एग्री करते हो? कितने लोग? उनके पास बहुत पैसा है. The point is, if you are starting a very technical startup और आप जाके उनसे पैसा प्राइवेट में ले लेते हो, वो आपको 10 करोड़ भी दे देंगे, लेकिन जो रिस्क होता है, अगर गलती से उसका 1 करोड़ भी गया तो अगले दिन लट पड़ेगी, डेट नहीं पड़ेगी, लट लेके आ जाते हैं. सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड दैट मनी इजीली एक्सेसिबल है. अगर आपको कोई टेक्निकल प्रोडक्ट लॉन्च करना ही है तो बेटर इज लुक फॉर अ स्ट्रैटेजिक टेक्निकल पार्टनर. Somebody who either has excelled in that field, somebody who either has resources in that particular field, somebody who knows that market better than you, जो आपको या तो फिर नेटवर्क में हेल्प कर सकता है. In our community, if I talk about, there is one company, Elon Markets. अब उनमें जो उनके फाउंडर है, he took a meager sum of 30 lakh rupees from Ramesh Dammani. Why? Because Ramesh Dammani sir himself is an investor. तो कहीं ना कहीं उनको वो नेटवर्क मिल जाएगा, and that is the reason. Today, in a couple of startups where I have invested, so in one, Kunal Shah is one of the investors, and another, Nitin Kamat's का Rain Matter जो है, Nitin Kamath himself is invested. The reason why we have collaborated is because we know this is similar kind of sector और same type की चीज़ यहाँ पर होगी. तो is the second point also clear to you? Yes or no? Yes. Louder, yes or no? Yes. जोर बोलने से क्या होता है? पड़ोसी अगर सो भी रहा है तो वो जग जाता है, तो इसलिए जरूरी है. Now the third thing which you got to understand, I am keeping it very basic. अब आप लोग सोच रहे हो कि इतना basic क्यों रख रहे हो? Because to all intents and purposes, in 20 minutes, you cannot understand the entire entrepreneurship. Entrepreneurship से आप बड़ा business, ये क्या बोल दिया, नहीं बना सकते. You know if you know. और इसी के पीछे पूरा माहौल आज चल रहा है 2-3 दिन से. पता है आप लोगों को क्या चल रहा है? पता है? yes or no? हाँ, तो नाम मत लेना, नोटिस आ जाएगा. तो आपको एक चीज समझना है कि you got to understand that entrepreneurship anyways you can't understand the entire crux. And the reality of entrepreneurship is until unless you don't go on the ground, you won't be able to survive. मैं बताता हूँ मेरा पहला किस्सा. 2011 के आसपास we did a lot of maths. हमने बढ़िया सी शीट बनाई और उसके हिसाब से we had a product of 1.2 lakh rupees per person हम लेंगे. On paper हम 3 महीने में करोड़पति बन गए थे. मतलब me and my partner were like अब करोड़पति बन ही गए हैं, बस चालू करना है. और पहले 2 महीने की इनकम थी 20,000.
अब वो कहाँ करोड़पति बनना था 3 महीने के अंदर, एंड 20,000. एंड दैट इज पर्टिकुलरली व्हेन वी रियलाइज दैट ऑन पेपर सारी चीज़ें अच्छी लगती है. फॉर एग्जाम्पल, वी इंडियंस हैव अ वेरी कॉमन थिंग, हम टीवी पे बैठ के बोलते हैं अरे कोहली को ऐसा खेलना था यार, खेला नहीं यार कोहली, यार वो ऐसा वाला बैट ऐसे करता ना ऐसे, तो मजा आ जाता. बॉस, व्हेन यू आर ऑन दैट क्रीज, व्हेन यू आर ऑन दैट ग्राउंड, द काइंड ऑफ इमोशंस, द काइंड ऑफ प्रेशर यू गाइस गेट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट. एग्रीड, यस और नो? तो कहना बड़ा आसान होता है, बिजनेस में भी सेम है. आप दिमाग में ख्याली पलाव अभी बना रहे होगे कि मैं निकलूंगा, मैं ये करूंगा, उसके बाद बीकेसी की सारी बिल्डिंग खरीद लूंगा, बहुत महंगे वैसे. तो ऐसा नहीं होता है. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज एक्ट. और एक चीज, बिकॉज रिसेंटली आई एम जस्ट कमिंग बाय गिविंग अ पॉडकास्ट, वहां पर भी मैंने एक चीज कही थी. आज के टाइम पे, एंड दिस इज वेरी कॉमन इन बिजनेस, योर नेटवर्थ विल बी डिफाइंड बाय योर नेटवर्क. किससे डिफाइन होगा? नेटवर्क. एंड नेटवर्क सिर्फ वो वाला नहीं कि भाई आज कोई बंदा मिला तो अपन ने फोटो खींच लिया और बोला ये देखो. नेटवर्थ जो आपका बनेगा, नेटवर्क वो ऐसा होना चाहिए कि रात के 12 बजे अगर आप उस शख्स से कोई हेल्प मांग रहे हो, दैट पर्सन शुड बी रेडी. इट शुड नॉट नेसेसरली बी फाइनेंशियल, इट कुड बी सजेस्टिव, इट कुड बी मेंटरिंग, इट कुड बी एनीथिंग, बट दैट इज द काइंड ऑफ नेटवर्क. तो वेरी फर्स्ट थिंग आप लोगों को आज से जो करना शुरू करना है, वो अपना नेटवर्क बनाना शुरू करना है. हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू नो कि एज अ स्टूडेंट हम कैसे नेटवर्क बना सकते हैं? जस्ट रेज योर हैंड्स. एज अ स्टूडेंट हम कैसे बना सकते हैं? So this is a very small key, very small key. Irrespective of whether you want to do a business or you want to do a job, please make a legit profile on LinkedIn. मतलब हम लोग जाके इंस्टाग्राम पे दिन भर स्क्रॉल कर रहे हैं कि ओरी भाई क्या कर रहे हैं, लेकिन हम एक प्रोफेशनल जाके हमारे लिंक्डइन पे प्रोफाइल नहीं बना रहे हैं. ओरी भाई तो स्मार्टली खेल रहे हैं, 20 लाख रुपए सेल्फी का ले रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं वैसे. बट you need to understand that once you have a professional LinkedIn profile, what could be the next step? Let's say you are into business. High ticket clients are there on LinkedIn. They're not on Instagram. They're not on YouTube. They're not on Facebook. तो आपको आपके नेटवर्किंग के लिए सबसे पहले अपना एक प्रोफेशनल LinkedIn प्रोफाइल बनाना है. एंड प्लीज मेक श्योर वो LinkedIn वाला ऐसा ना हो, ये वाला नहीं चाहिए अपने को. एक प्रोफेशनल, एक सूट वूट पहन लो, एक शर्ट पहन लो, दैट्स इट. द सेकेंड थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इफ यू वांट टू बिल्ड अप अ नेटवर्क इज आपको वो करना है जो आप में से प्यार में काफी सारे लोग हो जाते हो, बेशरम. यू नीड टू बी शेमलेस. दिस इज द क्रक्स. हाउ? लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू. आज तक जितने लोगों ने भी नेटवर्क बनाया हुआ है, इट इज बिकॉज दे देमसेल्व्स इनिशिएटेड. हम लोगों के अंदर फियर ऑफ रिजेक्शन बहुत होता है कि यार उनको डीएम अगर कर दिया क्या हो जाएगा? अरे कुछ नहीं होगा, रिप्लाई नहीं करेंगे ज्यादा से ज्यादा. आपको आके आपके घर पे आके चाटा थोड़ी मार देंगे कि यार तूने मेरे को डीएम कैसे कर दिया. ऐसा तो नहीं करेगा ना कोई. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज, इफ यू वांट एन अपॉर्चुनिटी, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट एनीथिंग, जस्ट गो आउट देयर एंड बी लिटिल शेमलेस. इफ यू आर गोइंग इनटू एनी इवेंट, आप खुद कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा रिजेक्शन मिलेगा यार बॉस, आप खुद करो. पता है, जब हम यूएस और इंडिया की डिफरेंस की बात कर रहे थे, कल्चरल डिफरेंस, यूएस के पीपल आर गुड सेल्स पीपल. व्हाई? 13 साल की उम्र में जब बाहर भेज देते हैं ना, तो वो इतनी ठोकरें खा जाते हैं, बिकॉज ऑफ विच दे आर डूइंग सो मेनी ऑड जॉब्स. वेटर बनने में उनको शर्म नहीं है, वेजिटेबल वेंडर बनने में शर्म नहीं है, क्योंकि उनका घर अपना खुद चलाना है, तो वो प्रोसेस में बेचना सीख जाते हैं. हमारे इधर में तो हमको सेल्स वर्ड बोल दिया तो भैया अरे ये तो बेच रहा है, ये तो गंदा इंसान है, छी 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 छी, ऐसे हो जाते हैं. बट द रियलिटी इज एट द एंड आप सबको बेचना है. डू यू नो हाउ? यस, जानना चाहते हो कैसे? आप लाइफ के हर फील्ड में बेच रहे हो. आपके जब प्लेसमेंट्स होंगे तो एचआर इंटरव्यूअर को अपने आप को बेचना ही है ना, क्योंकि सीवी तो आप सबके ऑलमोस्ट सेम बनेगी. आई हैव इंटरपर्सनल स्किल्स, आई हैव टीम लीडरशिप स्किल्स, ये तो गूगल से ही बनना है. एग्रीड? तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा पैकेज चाहिए तो अपने आप को बेचना है. उसके बाद जब आपकी अगर मान लो शादी होगी, लेट्स से जनाब आपकी अरेंज मैरिज हो रही है, ठीक है, गर्लफ्रेंड होगी कोई बात नहीं, बट अरेंज मैरिज हो रही है, छोड़ के जाएगी, तो अगर ताली बजा रहे हो वाह. तो मान लो, बुरा तो नहीं लगा? तुमको ही बोल रहा हूँ, तुम चेहरा छुपा रहे हो. हाँ आपको ही बोल रहा हूँ. हाँ हाँ आपको. अच्छा ओहो, शिल्पा क्या बोलेगी? एनीवेज, तो लेट्स से आपको अगर अरेंज मैरिज भी होगा, एट द एंड आपके घर वाले आपको सेल ही करने वाले हैं, है कि नहीं? मेरा बेटा आईसीटी का पास आउट है, पैकेज लगा था इतना, आज यूएस में बैठा हुआ है, इलॉन मस्क के दफ्तर में जाता रहता है 1-2 बार, सेल्फी खींची है इसने मोदी जी के साथ, है कि नहीं?
तो यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि एट द एंड आप सबको पॉइंट टू पॉइंट आपने आपको बेचना ही है. सो फॉरगेट अबाउट दैट शर्म हया वाली चीज. ये चीज करना शुरू हो जाओ. एंड हाउ वी कैन डू, इनिशिएटिव लेके. इज इट क्लियर? यस और नो? तो as an entrepreneur, as a businessman, as even an employee, it's very important that you understand this skill. हम ये नहीं कह सकते कि मैं तो इंट्रोवर्ट हूं, मैं कैसे करूं? कितने लोग इंट्रोवर्ट है इधर? जस्ट रेज योर हैंड्स, जस्ट बी ऑनेस्ट, जस्ट रेज योर हैंड्स. बेचारा इंट्रोवर्ट भी हाथ भी आधा ऊंचा कर रहा है. देखिए आप लोग इंट्रोवर्ट हो. फन फैक्ट, टिल 9th क्लास इवन आई वॉज एन इंट्रोवर्ट. आई जस्ट हैड 2 फ्रेंड्स. आज भी वो फ्रेंड्स हैं, वो बात अलग है. I just had 2 friends. क्योंकि बात तो हम सबसे कर ही नहीं सकते. Introverts can relate with this thing. हम तो अपनी अपनी दुनिया में ठीक है यार, है कि नहीं? बट परिस्थितियां बदलने के लिए खुद को बदलना पड़ेगा. आई एम नॉट सेइंग यू कैन बिकम एन एक्सट्रोवर्ट. सबसे इंटेलिजेंट लोग इंट्रोवर्ट्स होते हैं. बिल गेट्स वाज एन इंट्रोवर्ट. स्टीव जॉब्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वाज एन इंट्रोवर्ट. इफ यू अंडरस्टैंड. लेटर ऑन ही एक्सेल्ड इन द प्रेजेंटेशन स्किल्स. उनके जो पार्टनर थे स्टीव वॉजनाइक, ही वॉज हिमसेल्फ एन इंट्रोवर्ट एंड ही बिल्ट अप सो मेनी थिंग्स. Elon Musk, if you go dig deep, he was an introvert. तो ये आप लोगों के लिए एक तारीफ है. आप लोगों के अंदर दिमाग है. ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बाकियों के पास नहीं है. ऐसा स्माइल मत करो, बाकियों में भी है. लेकिन आपको धीरे धीरे इनिशिएटिव्स लेना पड़ेगा. लोगे यस और नो? तो इनके लिए ताली बजा दो यार एक बार. इनके लिए ताली बजा दो. गुड. एंड ये सभी इंट्रोवर्ट्स के लिए यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट जोन. Now coming back to the point, just 2 more points before we proceed, because at the end we'll again have a cumulative Q&A session where you guys can actually ask your questions. तो एक और चीज इन entrepreneurship आपको ध्यान रखनी है. The biggest problem. How many of you want to know what is the biggest problem? Yes बोल दो यार एक बार. बहुत बढ़िया. The biggest problem is जितनी चादर है उतने पैर फंसा लो in terms of debt. Dreams पे नहीं. Dreams आप बड़े देखो. In terms of debt. Mark Cuban, who was initially into Shark Tank आजकल ये जो चल रहा है ना, दोगले हो तुम, वो वाले. तो Shark Tank का जो initial concept US में चला था, तो वहाँ पर Mark Cuban was one of the most favored investors, because सबसे बड़े डील वही देते थे और लास्ट में आके काट के निकल जाते थे, है ना. तो Mark Cuban at one point of time clearly said that the biggest problem which most of the entrepreneurs or aspiring entrepreneurs are saying is initial days में they're taking loan for their products. ना यू वुड से कि सर बिना लोन के कैसे हो सकता है, पैसे तो घर वाले देते नहीं है. आप सेविंग्स करो ना, 1 आध साल जॉब कर लो, कोई टेंशन नहीं है. उस पर फोकस करो, अपने स्किल सेट्स बढ़ाओ. अगर सही में पैशनेट हो, 1 or 2 years इज नॉट गोइंग टू पुट यू बिहाइंड. जेफ बेजोस बिफोर जंपिंग इनटू Amazon did work for a while. Sachin Bansal before getting into a job did work for a while. So you got to understand there is nothing bad. अगर आप स्टार्टिंग में थोड़े टाइम करते हो या कोई दूसरा तरीका ढूंढ लो, फ्रीलांस ढूंढ लो, ऑनलाइन ढूंढ लो, देयर आर मल्टीपल वेज. व्हाई? बिकॉज अगर आप लोन लेते हो, आपको लगता है कि आप पहले महीने से XYZ सेल करोगे, इतना रिटर्न बनाओगे. व्हाट इफ अगर 2 महीने भी सेल्स नहीं हुई? हो सकता है ना. जस्ट इमेजिन, हाइपोथेटिकली अपने आप को इमेजिन करो, कितने लोग फूड इंडस्ट्री में कुछ बिजनेस करना चाहते हैं? जस्ट रेज योर हैंड्स. बहुत बढ़िया. तो दोस्त आप लोग हैं, आप जस्ट अपने आप को थोड़ा वाइंड अप करो और अपने आप को सोचो, आपने लोन ले लिया क्योंकि थोड़ा पैसा तो चाहिए. आपने लोन लिया, पैसे उधार ले लिया, और ये आपने लिया है 2020 के जनवरी 1st वीक में. तब तक सब बढ़िया है, सब बढ़िया, चकाचंद, सब बढ़िया चल रहा है. अचानक से वुहान से एक खबर आती है कि भैया किसी ने चमगादड़ खा लिया है. और चमगादड़ खाने के बाद क्या आया था? चमगादड़ खाने के बाद नहीं आया था, बट हाँ आ गया था. अब नाउ जस्ट इमेजिन, मार्च तक पहुंचते पहुंचते अचानक से हुआ लॉकडाउन. आपने 6 लाख रुपए का सिर्फ लोन लिया हुआ है और आपके पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है. फंस गए कि नहीं फंस गए? आपके खाने का इन्वेंट्री घर पे रह गया. सम पीपल माइट से नहीं हम तो हाउस डिलीवरी करेंगे, होम डिलीवरी. लेट मी टेक यू टू द इनिशियल डेज ऑफ द फर्स्ट लॉकडाउन. सबको कोई अता पता नहीं था. सबने प्रेडिक्ट कर दिया था दुनिया खत्म, है ना. हर कोई दुनिया खत्म था. एवरीवन वाज एक्चुअली वॉचिंग सोशल मीडिया कि भैया आखिरी दिन है, क्या करूं, जीवन में कुछ इंपॉर्टेंट करना है. सोशल मीडिया कंज्यूम कर लेते हैं, काचा बादाम देख लेते हैं, है ना. तो एवरीबडी वॉज लिटरली डूइंग द सेम थिंग. बट आई पर्टिकुलरली नो अ लॉट ऑफ पीपल इन मुंबई हु आर नाउ ड्राइविंग कैब्स, जो बहुत बड़े फील्ड से नहीं थे, बट दे हैड टेकन अ लॉट ऑफ लोन्स टू स्टार्ट अप देयर वेंचर्स, स्पेसिफिकली फूड इंडस्ट्री, और वो बंद हो गया. तो यही चीज शायद मार्क क्यूबन बताना चाहते हैं कि लाइफ इज सो अनसर्टेन इन टर्म्स ऑफ बिजनेस. कब क्या हो, कोई कॉम्पिटिशन आ जाए, कोई रेगुलेशन आ जाए, कोई लाइसेंस का वो आ जाए. गेमिंग कंपनीज पे अचानक से क्या हो गया है? Suddenly, the government actually came and said 28% taxes would be imposed on the
दिस थिंग. व्हाट हैपेंड टू द क्रिप्टो कंपनीज? आप में से कितने लोगों ने क्रिप्टो में निवेश किया है? जस्ट रेज योर हैंड, जस्ट से यस. किसने क्रिप्टो में किया था? तो सर आपके करेज को बहुत वो है, बिकॉज पोर्टफोलियो कैसा हो गया उसके बाद सबको पता है. बट आर यू इन प्रॉफिट? पीछे वाले ने ना कर दिया. बिल्कुल खुशी. नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. इफ यू आर इन प्रॉफिट, यू माइट हैव स्टार्टेड लिटिल लेट, तभी आप प्रॉफिट में. बट जस्ट इमेजिन व्हाट हैपेंड टू द क्रिप्टो बेस्ड कंपनीज. पहले हम इतने नाम सुनते थे, कॉइन डीसीएक्स, वजीर एक्स, सब हैं, बट अचानक से प्रमोशंस खत्म, अचानक से यूजर बेस खत्म. सिंपल एक वो आ गया. तो आपको हमेशा ये लास्ट रूल याद रखना है कि कर्ज लेके स्टार्टिंग से बिजनेस मत चालू करो. वंस यू हैव अ प्रूवन मेथड, वंस यू हैव रेवेन्यू, वंस यू हैव क्लाइंट्स, देन यू कैन स्टार्ट. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो हमारे रूल सिंपल सा है, यूएस के साथ कंपेयर मत करो, स्टार्टिंग में फंडिंग के लिए मत भागो, लोन्स के थ्रू मत भागो, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज बताई? योर नेटवर्थ किससे बढ़ेगा? नेटवर्क से. तो मैं एक बिल्कुल सिंपल सा क्रक्स एट द एंड में बताने वाला हूं, एक छोटी सी कहानी जो कि आपको हेल्प आउट करेगी. आर यू गाइस रेडी? यस, बहुत छोटी सी कहानी है. तो एक बार क्या हो जाता है, इलॉन मस्क को कितने लोग चाहते हैं? जस्ट से यस. बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट यूथ के इंस्पिरेशन है. तो इलॉन मस्क भाई साहब जब बच्चे थे, छोटे थे, तो इनके घर वाले बोलते थे कि अरे हेलो हेलो हेलो, ये सुनते ही नहीं थे, ये बस कुछ ऐसे कर करके देखते रहते थे. तो इनके घर वालों को लगा इनके ईयर में कुछ प्रॉब्लम है. एट द एज ऑफ 5 उनके कान का ऑपरेशन करवा दिया गया कि भाई कुछ प्रॉब्लम हो गई बेचारे की, सही करवा दो. डॉक्टर ने भी पैसा ले लिया, इनको लगा आप सही हो जाएंगे, अब भी सही नहीं हुए. अचानक से व्हेन ही वाज एट द एज ऑफ 6, देयर पेरेंट्स रियलाइज्ड कि इसको सुनाई सब देता था. द इशू वाज व्हेन इलॉन मस्क वाज फोकस्ड ऑन थिंकिंग अबाउट समथिंग, वो एक डिस्ट्रैक्शन भी ध्यान नहीं देते थे. वो सिर्फ उसी कंसेप्ट, उसी कोर कंसेप्ट, उसी मिशन, उसी एस्पिरेशन के बारे में सोचते थे. दैट इज द मिसिंग लिंक इन टूडेज टाइम. कॉन्सेंट्रेशन. विवेकानंद जी की भी एक कहानी है. विवेकानंद जी एक जगह पर बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, अचानक से वहां से बैंड बाजा बारात निकलती है, नोबडी केयर्स. अचानक से एक बंदा आता है आफ्टर 7-8 मिनट्स एंड विवेकानंद जी को पूछता है, अरे विवेकानंद जी, वो बैंड बाजा बारात आपने देखा? कौन सा बैंड बाजा बारात? मेरे को नहीं पता. ही वॉज सो एनग्रॉस्ड इन द स्टडी. फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन इज गोइंग टू बी द की. तो इसलिए अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन क्या करने हैं? बंद करो. सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल. येस और नो? शॉर्ट में है, Q&A सेशन वुड बी देयर. थैंक यू सो मच. Thank you so much, sir, for your articulate words and innovative perspective. It has definitely invoked multiple business ideas amongst us, right? Yes? Now let's continue our explanation of knowledge with our next speaker, CA Mahima Vachrajani. She is a popular Instagram influencer who does social media marketing. Being one of the mainstream influencer on the platform, she focuses on business, finance and management. She has a loyal fan base of 123K on Instagram. Influencer marketing with CA Mahima Vachrajani builds brand name and creates recognition through targeted mentioning and brand nurturing. Please welcome CA Mahima to the stage. अभिषेक भाई ने तो बता दिया कि बिजनेस कैसे करना है, पैसे कैसे कमाने हैं. पैसे कमाने के बाद क्या आता है? ठीक है, बट पैसे बचाना भी तो आता है, राइट? ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी कि पैसे बचाने कैसे हैं. ठीक है, सो सिंस ऑल ऑफ यू आर स्टूडेंट्स हियर एंड नॉट एंटरप्रेन्योर्स अभी, सो आई विल कवर कि एज अ स्टूडेंट आप फिनेंसेस अपने कैसे बना सकते हो, कैसे अर्न कर सकते हो और कैसे सेव कर सकते हो. सो माय एंटायर प्रेजेंटेशन अगर चल गया तो इज़ इन 2 पार्ट्स. वन इज़ हाउ टू मैनेज मनी लाइक अ प्रो एंड सेकेंड कॉन्टेंटप्रेन्योरशिप. जो इन लोग ने वर्ड टॉस किया है दैट इज़ कॉन्टेंटप्रेन्योरशिप, कि वी एज कॉन्टेंट क्रिएटर्स कॉन्टेंट क्रिएशन के बाद और आगे क्या कर रहे हैं, कंटेंट कैसे क्रिएट कर रहे हैं. लाइक ऑल ऑफ यू, आई एम प्रीटी श्योर वन ऑफ यू और मे बी मैनी ऑफ यू सिटिंग हियर would want to create content. So that, like, what will be the way forward for you guys? That is the part of my entire presentation today. How many of you sitting here earn? मैं पॉकेट मनी की बात नहीं कर रही हूँ. कितने लोग पैसे कमाते हो? लेट्स से आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, आई अंडरस्टैंड, बट एज अ साइड इनकम, any of you? Any of you? By the show of your hands.
ओके ठीक है, कोई बात नहीं. पॉकेट मनी तो मिलती है, पॉकेट मनी मिलती है, ठीक है. पॉकेट मनी को सारा स्पेंड कर देते हो या कुछ सेव करते हो? कौन कौन सेव करता है, हाथ उठाओ. ओके, और कौन कौन स्पेंड कर देता है? ओके, दैट्स अ लॉट ऑफ यू. ओके, सो जो लोग सेव कर पा रहे हैं, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू. ठीक है, वेरी गुड. दैट्स हाउ यू स्टार्ट. ओके, अगर सर ने बोला है कि बिजनेस बूटस्ट्रैप करना है, तो दिस इज हाउ यू विल बूटस्ट्रैप योर बिजनेसेस, बाय सेविंग फ्रॉम योर हार्ड अर्न मनी. ठीक है, सो जो लोग सेव नहीं कर रहे, अब आगे का प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए है. ठीक है, मैं ये नहीं बताऊंगी कि कितना परसेंटेज ऑफ योर पॉकेट मनी या जो भी इनकम आप अर्न कर रहे हो उसको सेव करो, बट मैं आपको एक बेसिक रूल्स बताऊंगी कि कैसे आप, हाउ कैन यू गो अबाउट इट. ठीक है, यूजुअली अपने दिमाग में मुझे ये बताओ, सेविंग्स का फॉर्मूला क्या होगा? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग्स. येस और नो? येस. हाउ मेनी ऑफ यू सेइंग येस? Okay, lot of you are saying no. So no, that's not the formula. Your formula should be earnings minus savings is equal to expenditure. Right? तभी तो सेविंग कर पाओगे. If you don't calculate कि आपको सेव कितना करना है, तो आप उसको खर्च कर ही दोगे, which is the case with most of you sitting here, right? तो बेसिकली जब लेट्स से आपको पॉकेट मनी कितना 10,000 मिलता है, 20,000 मिलता है महीने का? नहीं. ओके, लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस यार. ठीक है, ओके ठीक है. लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल कि आपको 10,000 रुपये मिल रहे हैं, एंड आई एम गेसिंग कि आपको फूड, सिंस यू गाइज माइट बी स्टेइंग इन अ हॉस्टल हियर, तो आपको खाने के लिए आपको जो भी रेंट वगैरह जो भी पे करना रहेगा, यू गाइज माइट बी स्पेंडिंग ऑन इट, राइट? So there's a basic fundamental rule which says 50-30-20 rule, which basically tells you कि 50% of what you are earning, or let's say what's your pocket money, 10,000 का पॉकेट मनी है, उसमें से 5,000 रुपये स्पेंड इट ऑन योर नीड्स. रेंट है, खाना है, कपड़े हैं, एक्सेट्रा. ठीक है, 30% फ्रॉम इट, दैट इज 3,000 रुपीज़. 3,000 रुपीज़ आई वुड से, आई विल नॉट से कि सारे के सारे दूसरे 5,000 रुपये आप सेव कर लो. मैं बोलूँगी 3,000 रुपये स्पेंड इट ऑन योर एंटरटेनमेंट. आई एम प्रीटी श्योर यू गाइज आर स्टेइंग अलोन, you would want to go to movies, you'd want to shop, right? So 3,000 rupees I'd say use on your let's say entertainment factor. But 2,000 रुपये, भले वो चाहे सिर्फ 2,000 रुपये हैं, बट वो 2,000 रुपये सेव इट, राइट? अगर सेव नहीं करोगे तो जैसे अभिषेक सर ने बताया, बूटस्ट्रैप, जिन लोगों ने हाथ ऊपर किया था कि मुझे बिजनेस करना है, उनके लिए इट विल बिकम डिफिकल्ट, राइट? अब नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि अगर 2,000 रुपये सेव कर रहे हो तो उसके साथ क्या करोगे? अब वो 2,000 को अगर आप सिर्फ रखोगे एज कैश या सिर्फ बैंक अकाउंट में, करंट अकाउंट में रखोगे, तो क्या होगा उसका? वो अपने आप तो बढ़ने वाला नहीं है, राइट? ठीक है, सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज दैट वेयर यू कैन इन्वेस्ट एज अ स्टूडेंट, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू हैव, आई मीन आई डोंट नो, आप लोग ने इन्वेस्टमेंट शुरू किया है बाय एनी चांस? कैसे, वेयर डू यू इन्वेस्ट, इफ आई मे आस्क वन ऑफ यू? वाह भाई वाह, स्टॉक मार्केट. कैसे, क्या, इफ जस्ट वन ऑफ यू कैन टेल मी कैसे, हाउ डू यू पिक व्हाट स्टॉक्स आर यू इन्वेस्टिंग इन? हाँ, अभिषेक सर, ओहो, वेरी गुड. सो ही इज गिविंग अ डिस्क्लेमर, ये सेबी रजिस्टर्ड नहीं है. ठीक है, ओके. So, Abhishek sir, definitely you can listen to what he is saying, but guys, do not listen to anybody and everybody on what they are suggesting, please. Please. Okay, it becomes, you're risking your money at the end of the day. This was not my point of discussing, but now that you have said कि आप stock market में invest कर रहे हो, at this age, I would say, खुद का रिसर्च बिना करे स्टॉक मार्केट में मत घुसो, ठीक है? सो फॉर यू गाइज, व्हाट वुड बी अ सेफ मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट? म्यूचुअल फंड्स, सॉरी, SIPs, परफेक्ट. SIPs म्यूचुअल फंड में करो, ETFs करो, वंडरफुल. इंडेक्स फंड्स करो. दीज आर द ऑप्शंस वेर यू आइडियली शुड बी इन्वेस्टिंग एज अ स्टूडेंट एंड नॉट इन स्टॉक मार्केट. कोई है यहाँ पे जो धुरंधर है और ट्रेड करता है? हाँ,
आप ट्रेड करते हो, वंडरफुल. डू यू हैव एक्सपीरियंस इन ट्रेडिंग? कोई बैकग्राउंड है? देन वंडरफुल, देन गो हेड. बट प्लीज़ बिना नॉलेज, बिना रिसर्च के ये सब मत किया करो, ठीक है? सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ when it comes to managing money like a pro, how many of you here पैसा आता है and then you actually think कि मैं इसको इन चीज़ों पे स्पेंड करूँगा या करूँगी? कोई बजट बनाता है यहाँ पे? कौन बनाता है? हाथ ऊपर करो. कोई नहीं बनाता है. एक आध हाथ ऊपर हुआ है. सो गुड, वेरी गुड. बट नहीं बनाते हो. आई नो बहुत लोग आके, आप बोलोगे क्या बोल रही है, बहुत लोग आके बोलते हैं बजट बनाओ. But I will be very honest about this. I have been doing this since I got my first stipend as an article. That was merely 3,000 rupees. 3,000 rupees में भी भले मैं अपने घर पे रहती थी, I used to make sure कि वो 3,000 rupees मैं कैसे allocate करूँगी, कहाँ spend करूँगी. ठीक है? बहुत सारे applications available है, Walnut है, Moneyview है, Good Budget है, जहाँ पे you can actually through your app you can just allocate your money and spend them wisely. ठीक है? So my recommendation, my prayers to you would be that please you make use of these wonderful apps. ठीक है? Now the third aspect to managing finance is debt. जैसे अभिषेक सर ने बोला, बिजनेस करने के लिए डेट से मत शुरू करो. इट्स अ वेरी बैड आइडिया. सिमिलरली आई वुड नेवर से कि भाई वो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए तो बिल्कुल ही डेट मत लो. बट यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन गुड डेट एंड बैड डेट. ठीक है? सो अ लॉट ऑफ यू हियर, व्हाट वुड बी योर एज? मे बी 20, 21, 18. ओके, तो ठीक है, you're not even eligible for credit cards. After 18 you're eligible for credit cards. But I would say कि if your parents have credit cards, this is what my father had done. I was a part of the signatory of his credit card. This is because उसके बाद I had a good credit score history that helps you in future. But this no way means कि आप credit cards का गलत इस्तेमाल करो. Right? I understand that your pocket money is not enough, but that does not mean that you have a credit card and go extravagant on credit cards, because at the end of the day उसको भी कभी ना कभी पे करना आएगा. Right? So there's a difference between good debt and bad debt, and that is something that you need to determine कि आपकी क्या लिमिट है, आप कहाँ तक स्पेंड कर सकते हो, उतना ही स्पेंड करो. ठीक है? So these are the few aspects of managing money like a pro. Now I'll come to contentpreneurship. I'll leave the presentation. Just leave it. How many of you here want to become content creators in some or the other way? थोड़ा ऊपर, थोड़ा हाथ ऊपर और मेरे को दिखे ऐसे. Okay, wonderful. Do you guys have any idea कि कैसे, how do you want to go about it, if I may ask you? Yes? जिसने हाथ ऊपर करा, अरे हाथ ऊपर कर लिया आपने. जिसको कंटेंट क्रिएटर बनना है, do you have you thought? Yes? I have a YouTube channel. Oh wow, wonderful. Starting before the college, I used to make videos through AI. Okay, I have stopped basically, but now I am trying wonderful. Why have you stopped? because of time. Time. Fair enough. Okay, very good. और किसने हाथ ऊपर किया था? ओके, आप कंटेंट क्रिएटर्स हो, बनना चाहते हो? यस, यू बनना चाहते हो. वंडरफुल. सो आपने सोचा है कौन से फील्ड में बनना चाहते हो? वंडरफुल. ठीक है. सो जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ, कंटेंट क्रिएशन डज नॉट ओनली मीन इंस्टाग्राम. बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है. इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, जहाँ पे आप वीडियोज़ बना सकते हो. सर ने बोला ऑल ऑफ यू, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू. अच्छा, मेरे को हाथ ऊपर करके बताओ कितने लोग की लिंक्डइन प्रोफाइल्स है यहाँ पे? प्रॉपर लिंक्डइन प्रोफाइल्स. हाँ, ओह वंडरफुल, वेरी गुड वेरी गुड. जिन लोगों की नहीं है, यू गाइज आर प्रॉमिसिंग मी कि आज जाके अच्छे से एक प्रोफेशनल लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओगे हर एक जन. ठीक है? सो लिंक्डइन इज अनदर प्लेटफॉर्म वेर यू कैन क्रिएट कॉन्टेंट. ठीक है? जो भी आपकी फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज है, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हियर बिलोंग टू द साइंस बैकग्राउंड, केमिकल इंजीनियरिंग, बीटेक वाले स्टूडेंट्स हो, राइट? सो इन योर फील्ड आपकी जो एक्सपर्टीज है, you can always write blogs on those things, right? That's how you can create your LinkedIn profile. And इनमें से जितने लोगों ने हाथ ऊपर किया था कि बिजनेस करना है, this is one of the way to where you can make contacts through your content and make your business grow.
ठीक है. सो दिस इज हाउ इम्पॉर्टेंट कंटेंट क्रिएशन इज. ठीक है. कमिंग बैक टू इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जिन लोग को यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाने हैं, I would say a few skills that you require is one is good communication skills, of course, right? Clear speech, good communication skills. But this comes at a very later part, ठीक है? For जो मैंने what I have seen is consistency. Sir, if you see sir के videos बहुत रोज, मतलब he is very active. I've always seen him. Versus me, I'm not very active because I literally I mean, I delayed. It's not like I don't have time or anything. But yes, consistency is very important in order to make your mark in terms of content creation, right? Second thing is sincerity. अपन अगर जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, राइट, तो यू गाइज विल ऑलवेज पुट इन योर 100% इन वॉट एवर यू आर डूइंग. तो ये अगर आप खुद के लिए कर रहे हो तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको लेके बहुत सिंसियर हो. उसके लिए इक्वली सिंसियर एफर्ट्स डालने होंगे आपको भी, राइट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कंसिस्टेंटली आप सिंसियर एफर्ट्स डालते रहो, एंड दैट इज़ हाउ यू विल ग्रो एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर. Now, how does content creator help, like being a content creator help you? जैसे अभिषेक सर आज बोल रहे हैं, सर has been a author, he's a YouTube creator. So through his journey, now he's become an investor now, right? So the way he's earned through content creation, the way he has made money through his entire journey, he's now a contentpreneur, the word that has been tossed, right? I'll tell you a small experience. I was just sharing with my friend कि as a CA, I was working at a very क्या बोलते हैं, niche जो CA करते हैं in a bank, ठीक है. And I was so bored of my job कि I thought यार, I need to do something which I really like. I really like to talk to people. I really like to always dig deeper in terms of stock market and stuff like that. So the thing on my mind was कि मुझे business journalism में जाना है, right? And that's how I approached. Just to give you a background, I work with NDTV Profit, and I just approached a friend of mine who was working there. And I was like, यार CV forward कर, देखते हैं क्या होगा, ठीक है. And that's where I forwarded them my LinkedIn profile, my Instagram profile, and I was hired as a business journalist only on the basis of my videos and my LinkedIn profile, right? That is how important. Thank you. That is how important content creation can turn out to be. I've seen so many amazing content creators. All of you know Tanmay Bhatt. All of you know Ranveer Alabadia, right? All of you know Bhuvan Bam. All of these were content creators and now have become contentpreneurs through their journey, right? So your way forward would be, creating a business out of it, definitely. But to start with, you should definitely, go ahead, explore कि कौन से field में आप कर सकते हो content. I would not say कि आप chemical engineers हो, मतलब आप chemicals के बारे में बात करो या जो भी. I really have no knowledge about what you guys study. But what you can do is, आपकी hobbies क्या है, right? आपकी हॉबीज़ क्या है, आपके इंटरेस्ट्स क्या है, आपको किस बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, किस बारे में रिसर्च करना अच्छा लगता है. सिलेक्ट दीज टॉपिक्स, गो हैड इफ़ यू कैन सी कि भाई आप इसके ऊपर कुछ कंटेंट क्रिएट कर सकते हो या नहीं. एंड दैट्स हाउ यू कैन गो अबाउट कंटेंट क्रिएशन, ठीक है. ऑल्सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अगर what kind of person would go for YouTube, Instagram, and what kind of person would go to LinkedIn. तो जैसे इन्होंने बताया कि जो introverts है, I'll suggest you to go ahead with LinkedIn, because LinkedIn पे you just have to keep posting, writing blogs and keep posting. And for Instagram and YouTube, if you're comfortable with camera, but I would also say कि you will always get comfortable over a period of time. When I started, my videos were pretty shitty. When you see them today, you can actually see a huge K-shaped graph कि भाई कितना improvement है, right? So you always get better over a period of time. But my sincere urge to you guys would be start. If you really want to do it, जिन लोगों ने भी हाथ खड़ा किया था, all of you, I would say just start.
I understand you guys don't get time. We also, I do a full-time job and with that I create content, right? So it's not very hard. Just make sure कि आपका time table उस हिसाब से हो कि आप दिन में let's say 1 hour you give to content creation and you go. And you guys have the advantage कि अगर आप 18 साल के हो तो आपके पास कितना ज़्यादा time है to grow. Right? And trust me, the field is not saturated. बहुत लोगों के लिए जगह है. And I'm sure कि हर एक platform अगर आपका content अच्छा होगा will welcome you with both the arms open. ठीक है? So जिन लोगों ने हाथ खड़ा करा है, I really wish कि I see you growing on multiple platforms, right? And at the end, yes, जैसे मैंने बोला कि मैं आप लोग सबके पास 2 pledges लूँगी. ठीक है? One is जिनके LinkedIn profiles नहीं है. Again, show me your hands. जो LinkedIn profiles नहीं है, LinkedIn profile बना के मेरे को LinkedIn पे हाय भेजना है. ठीक है? ठीक है? And दूसरा, बहुत सारे लोगों ने आज ऐसा बोला कि हम सेव नहीं करते हैं. I would say अगर 100 रुपये भी बच रहे हैं ना guys, तो बचा लो. ठीक है? बचा के please invest it somewhere or the other and see, you will see over a period of time how your money will grow once you start investing. ठीक है? That is the magic of compounding. I'm sure ये तो हम सब content creators ने आप लोग को सिखा दिया है. The power of compounding, right? So these are the 2 pledges that I want from you guys. ठीक है? करोगे सब? हाँ या ना? Okay, चलो. That's all I have for you guys. Thank you so much. And जो भी आपके questions है, we'll take it right now. Okay. Sure. Yeah. Thank you so much. A big thank you, CA Mahima, for gracing us with your profound insights. Your expertise has added depth to our discussion. Now the stage is set for a dynamic interaction. I invite both Abhishek Kar and CA Mahima to the stage for a question and answer session. This is all your chance, dear audience, to engage and dive deeper into the subject as discussed. लोग हाथ ऊंचा कर सकते हैं if they have any questions and then accordingly. So how to find a good niche to start a business? To start a business, Yeah. like I said, I think content creation and business go hand in hand. Correct me if I'm wrong, but niche, I would say, I was just talking to a friend of mine and I said niche. You cannot decide as to आपको ये पसंद है तो आप उसमें business करोगे. But I would say you should always keep an eye on trends, what is happening outside. Multiple ways है इसके Google Trends देखो, see what the government is announcing, क्या चल रहा है, किसके लिए subsidies announce हो रही है, किसके लिए there is curbing taking place. Take care of all of this and then decide what you can get into. Okay. And what about if I have a business planned out, like the complete steps, but I'm unable to apply these steps? The initial step is so hard to take. So how to, jump or travel to that path? which step do you think is difficult? Just to start, the first step. See, at the end, you have to motivate yourself. No external force can motivate you much other than money, obviously. So money is a very big driving force. But simple सी बात है कि आपको अपने आप को ये दिखाना पड़ेगा कि यार बॉस कितनी तलब है. The main answer is तलब. Do you seriously want it? How hungry you are? एक simple सा example देता हूँ. एक बंदा था एंड्रू कार्नेगी करके. Andrew Carnegie was at one point of time richest person on the planet after John D. Rockefeller. वो बंदा इतना hungry था. What he actually did is when he actually thought कि metals could be the next future, उससे पहले आयरन का सब कुछ चलता था. केरोसिन फिर आयरन चलता था. वो बंदा इतना हंग्री था, यू नो व्हाट ही डिड, उसने पूरी दुनिया का अपना सारा सब कुछ बेच दिया. एंड ही वाज सो हंग्री टू टेक दैट रिस्क. मैं नहीं कह रहा हूँ आप भी वैसा रिस्क लो, बट व्हाट ही डिड इट, उसने सारा का सारा पैसा, सब कुछ, ओवरड्राफ्ट से लेके सब कुछ मेटल इंडस्ट्री पे लगा दिया. द थिंग इज उसके बाद भी क्या हुआ, ऑब्वियसली व्हेन यू आर गोइंग टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ रिस्क, चाहे वो 10% का लो 100%, यू आर गोइंग टू फेस रिजेक्शन. ही ऑल्सो फेस रिजेक्शन. कोई उनके ब्रिज पे चल ही नहीं रहा था. देन यू हैव टू बी इनोवेटिव. आपको इनोवेटिव वेज ढूंढने हैं. उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि लोग मानते हैं हाथी जिस ब्रिज पे चल जाता है उस पर सबका फेथ हो जाता है, बिकॉज हाथी उधर ही चलता है जो सबसे ज़्यादा सेफ जगह रहती है. वो एक हाथी को हायर करके ले आए और उस ब्रिज पे चला दिया, और जैसे ही वो हाथी उधर चल गया सबका फेथ आ गया. ही थॉट ऑफ इनोवेटिव प्रैक्टिसेस. सो प्लेन एंड सिंपल है, आपको कूदना पड़ेगा. आग का दरिया है, डूब के जाना है. Okay.
Okay, and also can you outline different stages involved in startup funding? Pardon? Also, can you outline different stages involved in startup funding? आप बता रहे हैं, मैं बता दूँ? फिर आप भी बता देना. तो देखिए, there are different stages. It depends on at what stage you are actually applying for the funds. तो I usually go for pre-angel and angel rounds. Okay. Reason is कि थोड़ा शेयर मार्केट भी पता है तो मेरे को वैल्यूएशन कम चाहिए. बिकॉज दैट इज़ बेसिकली, तो एक तरीके से समझो जो शेयर मार्केट जितने लोगों ने हाथ ऊंचा किया था, तो मैं स्मॉल कैप जब माइक्रो कैप होता है तब घुसने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है. 10 वाले को अगर मैं पकड़ लूँ 100 पे जाने का पोटेंशियल ज़्यादा है रादर देन 70 में सेफ्टी है. बट जो भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है वो रिस्क ले रहा है. मेरे 11 इन्वेस्टमेंट है, मेरे को पता है हो सकता है उसमें से 7-8 फेल हो जाए, 2 निकल गए वो काम हो जाएगा. सॉफ्ट बैंक एग्जैक्टली डिड द सेम. उनके एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और ये निकल गए अच्छे, तो उनका सारा इन्वेस्टमेंट निकल गया. सो इफ़ यू आर गोइंग फॉर एन एंजल और अ प्री एंजल राउंड, इफ़ यू हैव अ प्रोडक्ट इन प्लेस, आपने थोड़ा बहुत भी अगर रेवेन्यूज जनरेट किया है फिर डिसेंट कंसेप्ट, आई थिंक थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे तो यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट द इन्वेस्टर्स. लॉट ऑफ पीपल थिंक कि आप वीसी फंडिंग पहले से उतर सकते हो. नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल. वीसीज वुड ओनली इन्वेस्ट व्हेन दे नो देयर इज अ स्केलेबिलिटी. एक स्केलेबिलिटी फैक्टर होना चाहिए. तो आप जब बोलते हो सिकोया आप पे इन्वेस्ट करे, टाइगर इन्वेस्ट करे, क्यों इन्वेस्ट करे भाई? You need to have scalability because they are going to invest into multiple crores. कुछ XYZ single digit crore या double digit crores में करेंगे. So when they are actually investing, they would prefer to take some substantial stake. And वहाँ पर वो strategic investor जिसकी मैं बात कर रहा था वो वाला phase आ जाता है. तो strategic investor is always looking for कि आप A to B आ गए हो. अब वो आपको B से C नहीं लेके जाना चाहता, वो चाहता है कि आपके B से Z तक की जर्नी पे वो आपके साथ रहना चाहता है, बिकॉज सीरीज A, सीरीज B इस तरह की सीरीज होने वाले हैं. सो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक चीज़ होती है, यू शुड नो योर नंबर्स. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. बिफोर इवन अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर द स्टेप्स, आप अपने नंबर्स जानो, कितने सेल्स हो रहे हैं, क्या रेवेन्यू हो रहा है, कितना आपका एक्सपेंडिचर जा रहा है, कैश फ्लो कैसे आ रहा है, कहाँ पर जा रहा है, लोन कितना जा रहा है, ये सारी चीज़ें हैं. बिकॉज एनी सेंसिबल इन्वेस्टर विल ऑलवेज लुक फॉर नंबर्स. आप बिना नंबर्स के आप सिर्फ ये सोचोगे कि आप जाके इन्वेस्टर को बोलोगे मेरा नुकसान में तो क्या हुआ, जोमेटो भी तो नुकसान में थी, तो नहीं चलने वाला. सिंपल सी बात है. तो यू नीड टू नो योर नंबर्स. सो देयर वुड बी देन सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी, इस तरह से सीरीज काफ़ी चलती हैं. दैट इज बेसिकली हाउ थिंग्स एक्चुअली वर्क आउट. तो यू इफ़ यू आर स्टार्टिंग, लुक फॉर एन एंजल राउंड. दैट इज द फर्स्ट थिंग. Okay, thank you. महिमा, आपको कुछ ऐड करना है? नहीं, आई थिंक ही इज कवर्ड इट ऑल. ठीक है. किसी और? हाँ. Does yeah, it's a two-parter question. Does growing capital from 20,000 rupees as a student make sense? And is the stock market the only place you can put your funds? Can you put it in other areas as well? And how do you recommend we divide it? Right. What was your first question again? 20,000 Yeah, kya? yeah, as a starting capital. As a starting capital for business. No, for stock market For stock, investing. or stock Or stock any market, investing, ठीक है, you know, yeah. just growing it. Definitely. Even Like business, I said, right? like I said, even 100 rupees से start करोगे तो भी बहुत है. So 20,000 तो is more than enough. But like I mentioned, as a student, I will not recommend you to directly jump into stock markets. I would say mutual funds के via invest करो, but I would never recommend jumping into stock markets directly. तो फिर वो 10-20 हज़ार का कैपिटल हो या 100 रुपये हो, I will never recommend you to jump to stock markets directly. He might have different views, but I will not recommend that. हाँ, तो शी इज़ राइट, आई हैव डिफरेंट व्यूज, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ द पोडियम. यू गेट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव. जो अच्छा लगे वो ले जाओ. मेरे हिसाब से व्हाट आई फील, अगेन कल्चरल डिफरेंस के साथ अगर आते हुए, इंडिया में आपके पास रिस्क लेने का, सबसे ज़्यादा रिस्क लेने का समय सिर्फ 26 साल तक का है. 26 साल के बाद देखो ये एग्री कर रहा है, मेरे घर वाले तो अभी से शादी की बात कर रहे हैं. तो otherwise, because what happens is beyond a stage, you are bound to get into responsibilities and all those things. But I would agree on that part. You should not go all in कि भैया 20,000 है तो 20,000 लगा दिए. If you have 20,000, the ideal step could be just go with 1,000 rupees. Just see how your stocks are performing, understand the behavior, try to study a few books on fundamental analysis if you are interested in technical analysis. So don't just put all the 20,000, because अगर मान लीजिए the biggest problem which a lot of students did is 20,000 थे पूरे Bitcoin में लगा दिए या फिर Dogecoin में लगा दिए. Now what happened is Dogecoin जब गिरा तो पूरा 20,000 चले गया. शिबा इनू, वो क्या था वो डॉगी वाला, उस पे लगा दिया. सो वन नीड्स टू अंडरस्टैंड, पूरा मत लगाओ, स्लोली फ्रैक्शन पे लगाओ. इफ यू आर स्टार्टिंग ऑफ दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम ऑल्सो, बिकॉज अदरवाइज वी हैव पीपल टू डिस्करेज. वॉरेन बफेट सर 15 साल की उम्र में चालू करके बोलते हैं आई एम लेट. बोले अरे तो क्या बचपन से आपको इन्वेस्ट करना था?
तो 15 की एज में वो लेट बोल रहे हैं, तो यू आर एनीवेज अराउंड 19-20, सो यू गॉट टू, अच्छा 18, हाँ 18, आई वॉज वेरी क्लोज, हाँ 18 हो गए हो. सो हाँ मतलब अभी तो बाली सी उम्र है, बट यू गॉट टू अंडरस्टैंड दैट आप थोड़े थोड़े से चालू करो. इफ़ यू हैव 20,000 जस्ट डोंट पुट एवरीथिंग इनटू स्टॉक. आप 2,000 म्यूचुअल फंड में डाल दो, 1,000 रुपये से स्टार्ट कर लो स्टॉक मार्केट में. थोड़ा अगर चुल है कि भैया अपन को ट्रेडर बनना है, क्योंकि स्कैम 92 तो देख ही लिया है ना, तो थोड़ा 1,000-2,000 से आप उधर कर लो. डोंट पुट ऑल द एग्स लाइक 20,000 इनटू द वन बास्केट. Also there's a rule which is 100 minus age rule. जैसे रिस्क की बात की, सो उससे याद आया मेरे को, विच सेज कि आपकी जो एज है, लेट्स से यू 20 years old, सो 20 years old मतलब आप 20% सिक्योर्ड फंड्स में डालो, 80% टेक द रिस्क, बिकॉज इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट? द यंगर यू आर द मोर रिस्क यू कैन टेक. तो that's how you can also bifurcate your और 20,000 उस रूल को ना 80 वाला कर दो, बिकॉज आजकल इतने जीते नहीं है. 100 तक कौन जी रहा है यार? चार्ली मंगर बेचारे 99 पे चले गए. There was a part 2 to the question. Are there other areas you can invest? Like, I'm not talking about cryptocurrency and options. I'm saying like other than stock market. And how would you divide the money? Because there are other areas, right? There's you can always go to the safer investments, that is FD. जैसे I mean you can always, but यार FD में ये है कि इन्फ्लेशन अभी इतना ज़्यादा है कि FD के जो रिटर्न्स आ रहे हैं, you probably lose your money rather than earning interest on it. So the safest bet is mutual funds. Do your SIPs via mutual funds. Go for index funds for sure. Go for ETFs for sure. So I want to ask, what are the common mistakes that financial mistake that people make, and how can they be avoided? Like sir, you said कि 3 महीने में करोड़पति बनने वाले थे और 20,000 रुपये मिला. तो please share your experience. पहले ये टॉन्ट था या क्या था? सीख चाहिए हमको थोड़ी सी. अच्छा पहले मैं बता देता हूँ, फिर महिमा जी भी बता देंगी. यार देखो, सबसे बड़ा मिस्टेक जो आज के टाइम पे स्टूडेंट्स ये कर रहे हैं, जो मैंने पहले ही बता दिया, आपके यू आर थिंकिंग फ्रॉम एब्सोल्यूट वैल्यू, थिंक फ्रॉम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. प्लेन एंड सिंपल है. अगर सारी चीज़ का सारांश बताऊँ, क्या हो रहा है कि हम ट्रेडिंग करने आते हैं. कितने लोगों ने बोला था स्टॉक मार्केट? जस्ट हाथ ऊंचा करो. बहुत लोग हैं. बहुतों ने बोला था ना. अब हाथ ऊपर नहीं कर रहे हैं. अब नहीं यार, अब तो मैडम ने डांट दिया है. तो जब स्टॉक मार्केट हो तो यूट्यूब कभी गए होगे, यूट्यूब खोलते हो पहले पेज में दिखता है 5,000 से 5 करोड़ कमाओ एक महीने में. अरे भैया 5,000 से 5 करोड़ कमा रहे हो तो यूट्यूब क्यों बना रहे हो? मैं तो नहीं कमा रहा, सच बता रहा हूँ. 5,000 से तो नहीं कमा रहे, उतना भले कमा लिया हो, बट 5,000 से नहीं कमाए. तो पॉइंट है, पहली चीज़ है आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचो. द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर इन दिस वर्ल्ड एज ऑफ नाउ कौन है बताओ? बेस्ट इन्वेस्टर सबको लगता है. अ ट्रेडर हैज एक्चुअली ब्रोकन हिज रिकॉर्ड. जिम साइमंस है, इंजीनियर ही है, ठीक है. 66% का CAGR है पोस्ट शेयरिंग के बाद फॉर 30 कंसेक्यूटिव ईयर्स. वॉरेन बफेट सर का 24% का CAGR है. जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेडर है, मतलब 0.00001% में जो आता है, वो साल भर का 66% बना रहा है. मान लेते हैं आपको ब्रह्मा जी ने वरदान भी दिया है कि आप दुनिया के सबसे बेस्ट ट्रेडर भी हो, तो लेट्स से आप बना रहे हो 70%, 70%. मैं तो बोल रहा हूँ ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के बाद, उसके बिना नहीं. हाँ, तो अगर 70% बना रहे हो एज अ स्टूडेंट, 20,000 रुपीज़ आपके पास है, 70% फटाफट निकाल के बताओ कितना होता है साल का? 14,000. 14,000 में यहाँ से माटूंगा 4 बार राउंड लगा लोगे, खत्म हो जाएगा. समझ रहे हो आप? तो पॉइंट है कि इट्स वेरी इजी, पर वहीं पे लोग सोचते हैं मैं 20,000 लगाऊंगा 20 लाख कमा लूंगा. तो पहला मिस्टेक होता है कि हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे नहीं सोच रहे हैं. द बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स, व्हाई मुकेश अंबानी गॉट सो रिच? बिकॉज ही इज कंपाउंडिंग इज वेल्थ एट 18%, 17-18% से वो कंपाउंड करते जा रहे हैं. एशियन पेंट 30% के हिसाब से कंपाउंड करते जा रहा है. पिडिलाइट 22-23% के हिसाब से कंपाउंड करते जा रहे हैं. तो जब इतने बड़े बड़े धुरंधर लोग 20-30% पे कंपाउंड कर रहे हैं, व्हाई डू वी थिंक कि 100% से करेंगे? रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन. दूसरा, डोंट गो ऑल इन एनी पर्टिकुलर एसेट क्लास. मैं तो इक्विटी भी नहीं बोलूंगा. रीजन क्या है? जापान में 25 साल मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिया था. 25 साल. सोचो, आपने 25 साल की उम्र में चालू किया अपने बेटे के लिए जमा करने के लिए. बेटा बड़ा होकर पूछा पैसा कहाँ है? बोलो रुक जा, कंपाउंडिंग चल रहा है. अरे कहा का कंपाउंडिंग? जापान में होता तो वही कंपाउंडिंग रुका है. 25 साल के बाद जाके आपको रिटर्न मिला है. तो आई एम नॉट सेइंग इंडिया में कभी वो पोजीशन आ जाएगी, बट उसको डाइवर्सिफाई करो. तीसरा सबसे बड़ा फाइनेंशियल मिस्टेक आप लोगों को बताता हूँ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और ये सारे इंडियन एक्सपीरियंस करते हैं. रिश्तेदारों को उतना ही पैसा दो जिसकी आपको वापस आने की उम्मीद नहीं है. सेम गोज विद दोस्त. ये जिसको उधारी दी है ना, वो देखो पलट गया, हाँ तेरे को उधार दिया. हाँ, नहीं मिलने वाले. वो टरका के क्लास खत्म हो जाएगा, नहीं मिलेगा. दिस इज द बिग मिस्टेक एंड दिस इज जेन्युइन. वही पैसा दो. अगर आपको लगता है ना कि मेरे पास 100 रुपीज़ है और मैं अगर 100 किसी को उधार दे दूँ तो मैं सो नहीं पाऊंगा, मत देना.
20 देने के बाद मैं आराम से सो सकता हूँ, चले भी गया वही देना। बोल देना नींद मेरे किडनी में स्टोन हो गया, 80 रुपये खत्म हो गए, 20 रुपये दूंगा, ये बहाने कर लेना। दीज आर द 3 लेसन्स महिमा जी। Right. So I think 2 lessons as a student that I would say is कि आप में से बहुत सारे लोगों ने हाथ ऊपर नहीं करा था when I said how many of you invest. Like he said, 15 years of age also Warren Buffett को लगा था कि मैंने बहुत late investment शुरू करा है, right? So I think first mistake that we are doing is not like जितना like I've mentioned this a lot of times now, but 100 रुपए से भी investment शुरू करो, but शुरू करो, start investing. That's the first mistake that we make. And second, like he mentioned, do not put all your eggs in one basket. ये बहुत ही repetitive बोला गया है, but people don't understand. And this I will not recommend as a student, but eventually if you grow up, I've seen a lot of professionals. I understand that you don't belong to a finance background. Hire somebody who can manage your money for you. ठीक है? If you don't understand, there's no point losing your money. There's no point not growing your money. So you'd rather, if you're making let's say even 12% out of your investment, and if you give 2%, 10% तो आप कमा रहे हो, तो please hire somebody for managing your money. Hello sir, hello ma'am. So recently there has been a lot of hype around Shark Tank, and काफ़ी food businesses के मतलब I have 2 questions basically, and many business. So basically the question is, how do business models with a cash burn work, and उनका cash burn है ये दिखने के बाद भी उनका valuation में मतलब valuation 5 CR का कैसे दिखा लेते हैं? ये valuation वाला चीज़ कैसे चलता है? इसको कहते हैं जुमला। द रियलिटी इज दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट जो मेन पिचिंग आ जाती है एट द एंड घूम फिरा के, वो होता है कि हमने इतने कस्टमर्स एक्वायर कर लिए जिनको हम नियर फ्यूचर में मोनेटाइज कर लेंगे। सिंपल सी बात है। नायका जब 1200 के पी में आ रहा था, नायका समझ गया ना, जो लेडीज़ सबसे ज़्यादा जहाँ से शॉपिंग करते हैं, तो वो जब आया उसका जो वैल्यूएशन था, उसके वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने का मतलब पता है क्या था? 140 करोड़ की जनता इंक्लूडिंग जेंट्स अगर हर महीने एक कुछ ऑर्डर करेंगे नायका से, तब जाके वो जस्टिफाई हो रहा था उनका वैल्यूएशन। उसके बाद अभी एक IPO आया था बीच में, कौन सा आया था? मामा अर्थ। अब उसमें अब अगर आप प्रॉफिट देखोगे, गिनती के 4 करोड़ का प्रॉफिट था, और वैल्यूएशन में सबका कैरेट कटेगा उसमें, समझ रहे हो? अब कैरेट अब समझ जाओ, इधर बोल नहीं सकते। तो आपको एक चीज़ समझनी है, दिस इज ऑल अ गेम, पास इन द पास चलता है वैल्यूएशन की दुनिया में। द बिगेस्ट फूल, ये म्यूजिकल चेयर्स जैसा होता है ना, कि एक इन्वेस्टर दूसरे को पास कर रहा है, दूसरा थोड़ा बड़ा करके तीसरे को कर रहा है, तीसरा जो आखिरी में फंस जाता है वो फंस जाता है। तो दिस इज ऑल पास इन द पास गेम विच इज गोइंग ऑन। माई इफ यू आस्क, मैं इस मामले में थोड़ा सा ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस रखता हूँ, हल्का सा। आई नो देर वुड बी कैश बर्निंग प्रोसेस, देर वुड बी कंपनीज विच विल बी स्टिल प्रॉफिटेबल। फॉर एग्जाम्पल, अमेजॉन ने अपनी जिंदगी में हार्डली 1 या 2 बार प्रॉफिट रिकॉर्ड किए हुए, बट स्टिल जेफ बेजोस इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन्स। आई गेस सेकंड है, अभी फर्स्ट या सेकंड में ही चलते रहता है उनका। तो वो इसलिए रहता है बिकॉज दे हैव क्रिएटेड अ नेटवर्क एंड दे हैव एक्वायर्ड सो मेनी कस्टमर्स, जिनको वो इन अ फ्यूचर वैल्यूएशन किसी भी तरीके से मोनेटाइज कर सकते हैं। अमेजॉन कर ही रहा है, पहले अमेजॉन प्राइम के लिए पैसे ले रहा था, अब वो मिनी टीवी ले आए, उसको भी मोनेटाइज कर देंगे। फिर उसके बाद प्राइम लेके आए, प्राइम पहले 1 दिन में डिलीवरी कर रहा था, अब 3 दिन में करता है, बड़ी परेशानी है। तो आपको समझना है कि धीरे धीरे करके फिर वो अमेजॉन ग्रॉसरीज में भी आ गया, सब में आ गया। तो दिस इज बेसिकली व्हाट ट्राइंग टू डू। तो जोमैटो को वैल्यूएशंस इसलिए मिल रहे हैं बिकॉज दे आर थिंकिंग दिस इज द लार्जेस्ट प्लेयर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जो सब लोगों को हड़प जाएगा, शार्क जैसा सबको खा जाएगा, एंड एट द एंड जोमैटो ही बचेगा। तो जब जोमैटो ही बचेगा तो वो रूलर रहेगा। दिस इज अ बेसिक assumption. That is why, yeah. But sir, as an investor, why would you invest in a business model with a cash burn? Because as simple as that, I want to play the pass in the pass game. मेरे को एक higher valuation पे बेच के निकलना है, as simple as that. But then ये तो फिर वही कोविड वाली बात हो गई। कौन सी वाली? कोविड का जो आपने एग्जांपल दिया। As an investor, we are always taking risk. Always remember, as an investor, I'm not just investing into you. I'm investing into 10 different companies of different sectors probably. मैंने जो 11 किए हैं, all are non-correlated. One is into the bond markets, another one is into the food business. Everyone is into different sphere. So I am just taking my chances with permutation and combination कि बॉस अगर तुम्हारा चीज़ चल गया, जैसे मान लो तुम्हारा फूड बिजनेस है और मेरे को ऐसा लगता है कि तुमने कोई ऐसी चीज़ निकाल दी कि भैया बहुत मतलब तहलका मच जाएगा इस चीज़ से। फॉर एग्जाम्पल ये, और इसमें कभी कभार उल्टा भी पड़ता है। जैसे एक केस पड़ा हुआ था, मैं छोटा सा केस बताता हूँ, US का ही केस है।
एलिजाबेथ होम्स करके, डज एनीबडी नो कौन सी कंपनी चलाई थी, बताइए? थैनोस नहीं बनाई थी यार, हाँ वैसे ही साउंड करता है। तो थैनोस, तो उन्होंने क्या पिच किया था? उन्होंने सिंपल सा पिच किया था कि वी आर क्रिएटिंग अ मशीन एडिसन नाम की, जिसपे कि आप 10 सेकंड के अंदर या 10 मिनट के अंदर 200 टेस्ट आपके बता देंगे, कैंसर है कि नहीं है, ये है कि नहीं है। अब उनने दिमाग क्या लगाया? उन्होंने बोला पास इन द पास गेम अगर मेडिकल इन्वेस्टर्स के पास खेलेंगे तो हम तो फंस जाएंगे। तो उन्होंने सीधे पिच किया लैरी एलिसन और इन सबको, टेक्निकल वालों को, उनके नाम से फिर इनने काफी मेडिकल वालों को किया। एट द एंड 2015 या 16 में जब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने निकाला कि भाई ये तो फर्जीपने कर रहे हैं, कुछ ऐसा है नहीं, तब जाके चेक किया गया तो पता लगा। तो इन्वेस्टर्स का तो पैसा डूबा ना उस चीज में, पीपल वर शॉर्ट कि इतना बड़ा फ्रॉड हो गया। तो ये चीज भी होती है, एवरीवन इज एक्चुअली स्पेक्यूलेटिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, and at today's point of time a lot of people they just want कि how bigger scale you can become in terms of e-commerce business। तो ये कैश बर्न वाले ज्यादातर आप देखो वो e-commerce पे हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत कम। ट्रेडिशनल बिजनेस तो डायरेक्ट कैश फ्लो वाले हैं, इन्वेंट्री कम रहेगी, टर्नओवर जल्दी होगा। तो ये ई-कॉमर्स वाला है, और ई-कॉमर्स वाला आई एम स्टिल सेइंग काफी सारे लोग, मैंने स्टार्टिंग में जो वर्ड बोला था, जूमला खेल रहे हैं। If Mahima wants to add something on that No, part. I think today valuations are also based on the brand value. I mean, let's say Mama Earth, Nykaa, Zomato, ये सब जब list हुए थे, we saw what happened to those shares, right? So I think a lot of it depends on brand value also, and like he's saying, the money like circulates in a pool. It keeps on going from one investor to the other. Last में जो फंसता है वो फंसता है। सर अगर एकदम लेमैन टर्म्स में पूछूं तो वैल्यूएशन निकालते कैसे कंपनी का, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज? नहीं तो कैसे? There is actually a lengthy process, ऐसे बैठे बैठे वैल्यूएशन निकलता तो हर बंदा शार्क टैंक में होता है। एग्जैक्टली, बट मतलब वही तो समझ में मल्टीपल्स निकालते हैं बेस्ड ऑन योर रेवेन्यूज, बेस्ड ऑन योर प्रॉफिट्स, फ्यूचर प्रोजेक्शंस के बेसिस पे। अब कितने अच्छे से आप इन्वेस्टर को उल्लू बना सकते हो, ये भी आपके ऊपर स्किल है। जैसे मैं खुद जानता हूँ हमारे देश के कुछ बिलियनर्स को उल्लू बनाया गया है, इन्फ्लुएंसर्स नहीं बनाया है, अब मैं नाम नहीं लूँगा। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ वेल यू आर इन टर्म्स ऑफ पिचिंग योर वैल्यूएशंस। मल्टीपल्स होते हैं, लाइक देर आर सर्टेन इंडस्ट्रीज जिस पे ज़्यादा मल्टीपल्स मिलते हैं, देर आर सर्टेन इंडस्ट्रीज जहाँ पर कम मिलता है, देर इज अ लेंदी प्रोसेस। तो जब आप रेस करने जाते हो तो ऐसा कुछ नहीं कि अंधा लगा दिया, अच्छा 1 करोड़ का बिजनेस हो रहा है 100 करोड़ वैल्यूएशन, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू सिट विद अ फाइनेंशियल पर्सन, समबडी हु विल हेल्प यू विद द रिपोर्ट्स एंड ऑल दोज थिंग्स। आपकी गुडविल, जो मैम ने बोला, ब्रांड वैल्यू, इन सब के बेसिस पे बनाया जाएगा। जैसे वो बोलेंगे कि नहीं यार ये बंदे की ब्रांड वैल्यू तो अच्छी है, मतलब ये बंदा अगर कुछ लॉन्च करेगा सारी लड़कियां तो खरीद ही लेंगी, खुद ही हंस दिए यार। तो अगर इस तरह से पूरी ब्रांड वैल्यू बनी है तो आपका वैल्यूएशन हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर IPO, इफ़ यू क्लोजली ऑब्जर्व, 3 साल पहले से सारे फाउंडर हर पॉडकास्ट में आ रहे थे। व्हाट वाज दैट? दैट वाज ब्रांड वैल्यू अपनी बना रहे थे, एज सिंपल एज दैट। तो ये भी समझ जाओ, जिस कंपनी के मालिक बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट और बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स के पास आते हैं, हो सकता है उनका IPO आ जाए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। Ma'am, I had a question for you. Like you were speaking about how we can manage our money effectively and save. Right. So I had a question about UPI actually, because like in college, 90%, not 90, 99% of payments are done by UPI. Right. So what is your opinion about it? Should we start using cash again, like, or should we continue the dependence? Right. Thank you so much for asking me this question. मैं हमेशा I bring this up in my speeches कि हम, you know, there was a meme saying कि हम UPI ऐसे use कर रहे हैं जैसे actually Google पे अपने पैसे दे रहा है, you know. So definitely what I practice is I'm going to tell you. There are some expenses जैसे if you go to a grocery store, एक चीज़ खरीदने गए and then you end up, you know, buying a lot of other things. I would suggest इस टाइम पे कैश रखो थोड़ा सा। I'm not saying go all cash, no, that's not the right way. जहाँ पे आप जैसे उबर कर रहे हो, कुछ शॉपिंग कर रहे हो, प्लीज़ यूज़ UPI, बट जहाँ पे आप बचा सकते हो प्लीज़ यूज़ कैश देयर। एंड इसके लिए I have a very effective way. When you say manage money like a pro and save money like a pro, what I practice is I have 2 bank accounts, ठीक है? एक जिसमें सैलरी आता है, ठीक है, जिससे UPI कनेक्टेड है, लेकिन दूसरा बैंक अकाउंट है जिससे मेरे सेविंग्स, जिससे मेरे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। तो द मोमेंट माई सैलरी इज़ क्रेडिटेड और इफ़ आई वट एवर मनी इज़ क्रेडिटेड, जितना अमाउंट मैंने सोचा है कि इसको इन्वेस्ट करना है, मैं उसको ऑटोमेटिकली दूसरे अकाउंट में डाल देती हूँ, ताकि उससे कोई UPI लिंक्ड ही नहीं है। तो इवन इफ आई वॉन्ट टू स्पेंड दैट मनी, आई विल नॉट बी एबल टू, क्योंकि UPI लिंक्ड ही नहीं है। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ फॉलोइंग दिस थिंग, कि जहाँ पे आप UPI यूज़ भी कर रहे हो और नहीं भी यूज़ कर रहे हो।
Another question that, like, I don't know about, my parents are always telling me that never use credit cards, always use debit card, you don't want that credit. So what is your opinion about that? Like, as long as we are completing our payments, should we should we use credit card or should we stick to debit card? एब्सोल्युटली जो क्रेडिट कार्ड्स का क्रेडिट पीरियड आपको मिल रहा है 30 डेज 45 डेज राइट, जस्ट टेल मी वन थिंग कि उतने दिनों में आपके पास कैशलेस उतना कैश आपके पास एक्सेस में ज़्यादा होगा. दैट मीन्स उतने कैश पे आप कुछ ना कुछ इंटरेस्ट कमा पाओगे, राइट. सो यू ऑलवेज हैव दैट पीरियड टू मेक मनी आउट ऑफ द मनी यू आर एक्चुअली हैविंग. दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स. आई विल नेवर से डोंट यूज़ क्रेडिट कार्ड्स, बट अगेन नो योर लिमिट्स ऑफ यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स. जितना जैसे अभिषेक भाई मेंशन कि जितना चादर उतने ही पैर फहराने चाहिए. That should be, you should know your limit and at the same time make use of good applications like Cred where it keeps reminding you कि भाई आपका credit card bill pay करना है and pay them on time. Yes. Hello madam and sir. So my question is, today we look at a lot of influencers and they talk about SMMA. So if you could explain what that was and how to start your own journey in SMMA. SNMA? What is that? Can you, I don't know what is SNMA. I'm sorry, I thought someone introduced you saying you were social media marketing. So, okay, social media, okay, I'll tell you what social media marketing is. Basically, there are marketing agencies which manage influencers, and at the same time, they're also managing, now for big content creators, they are managing their content. They are, so what happens is, it's an agency जहाँ पे एक brand और एक influencer को connect करता है agency. So basically, there are so many brands that are ready to give money to influencers to promote them. So agency acts as a mediator, and let's say they charge a particular amount of commission to that, and they bring brand deals to the influencers. That is what a social media marketing agency does. Right. Sir, as you said, US is 3 to 5 years ahead of us. So what should we do to get in par with them? And as you said, rule number 1, don't compare with US. US चले जाओ. That is. नहीं. I'll. And what skills should we develop in terms of it, sir? See, in today's age, you have access to internet, so it doesn't take much time. वो नैरो होते जा रहा है. पहले 10-12 साल लगते थे, फिर वो 6 साल हुए, वो 3 साल हो गए. अब it has even come down to for example, आप देखो 2G, 3G को काफ़ी टाइम लगा, लेकिन 5G आने में कितना जल्दी हो गया. We were just 2.5-3 years back. जैसे US में, चाइना में लोग नाचने लग गए टिकटॉक, तो इंडिया में भी शुरू हो गया है, इंस्टाग्राम पे हो गया है. तो पॉइंट इज नाउ वी आर एक्चुअली कैचिंग अप द ट्रेंड्स वेरी फास्ट थैंक्स टू इंटरनेट एंड थैंक्स टू जियो स्पेसिफिकली. जियो के आने के पहले वी वर एक्चुअली कंज्यूमिंग ऑन एन एवरेज मंथली क्लोज टू 150 MB average usage. Now it has gone to 15.8 GB per month. That's the average usage. तो thanks to Jio, तो अब Jio है तो उसको केवल बाहुबली के ट्रेलर देखने के लिए क्यों लगा रहे हो? Do a bit of R&D. Read a couple of so for example, if you want to stay in touch with what is exactly happening over there, stay in touch with Bloomberg. By the way, she's in Bloomberg. And then you can actually go through Wall Street Journal. You can go through their couple of publications. So this way you can actually identify what is exactly happening. And one quick hack मैं बताता हूँ. Just look around. So let's say you want to catch up the trend little early. तो फॉर एग्जाम्पल क्रिप्टोज बाहर तो 2008-2010 के बाद और 2012 में काफ़ी अच्छा पिकअप हो रहा था. हमारे इधर आते आते 2019-2020 में स्पेसिफिकली अ लॉट ऑफ पीपल वेंट इनटू क्रिप्टो. आप ये कैसे पता कर सकते हो? एक सिंपल सा हैक है. लुक इनटू द बिग जायंट इन्वेस्टर्स, VC फंड्स लाइक सॉफ्ट बैंक, लुक इनटू टाइगर ग्लोबल, और आप ये सिंपल देखो ये आज कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं. बिकॉज ये आज इन्वेस्ट करके आज ही पैसा नहीं निकालेंगे. They're investing into the future companies. So for example, when we are talking about EV and AI, these people started investing 4-5 years back. And today we all are talking about AI and this thing. So just go on Google, search where are these people investing. क्यों? अब ये ऐसे ही हज़ारों करोड़ ऐसे तो इन्वेस्ट करेंगे नहीं. इनके पास कुछ तो दिमाग होगा और इनके बड़ी टीम है. हम लोग जुगाड़ू लोग हैं, अपना दिमाग क्यों लगाएं? सिंपल सी बात है. वो लोग जब लगा रहे इतना दिमाग, उनको हमको बस पकड़ना है कि हाँ भाई अच्छा नाउ दे आर इन्वेस्टिंग इनटू दिस. तो अभी फॉर एग्जांपल अब नई चीज़ आ रही है. अब कुछ लोग एक से चिप्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, खाने वाला चिप्स नहीं बोल रहा हूँ, जो एक कोई चिप है उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आपके मरने के बाद भी आपका दिमाग जिंदा रहेगा. इस तरह से कुछ है. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली वर्किंग ऑन टेलीपोर्टेशन. आप इधर बैठोगे दुबई पहुँच जाओगे.
So I'm not saying that is going to happen early, but this is how you need to check into the trends, what is going to come next. आज से 5 साल पहले AI के बारे में कोई काम ही नहीं करता था, बात ही नहीं करता था, बट टुडे आपके सारे असाइनमेंट चैट GPT से बन रहे हैं. तो सिंपल सा है, आप जाके बाहर का जब आपने बोला यूएस का, तो जस्ट गो लुक अराउंड वेयर आर द बिगर इन्वेस्टर्स एक्चुअली पुटिंग देयर मनी. एक इन्वेस्टर को या एक हाउस को देख के मत करो, बिकॉज दे माइट बी टेकिंग अ बिग रिस्क. फॉर एग्जाम्पल चाइनीज़ कंपनीज ये काफ़ी करती है. चाइना में वहाँ पर क्या रहता है कि जो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज होती हैं उनको बहुत सपोर्ट रहता है, बिकॉज वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, तो उनका अलग सिस्टम चलता है. उनको रिस्क लेने के लिए 15 से 20 साल दिए जाते हैं कि बॉस एक तरीके से लोन लिया ना, 20 साल तक तुम एक्सपेरिमेंट करो, उसके बाद देना है. सो उनकी फिलॉसफी अलग रहेगी. बट यूएस की अगर आपको करना है तो यूएस में ऐसा नहीं होता है. यूएस में आपको दिया हुआ है तो 3 साल में भैया कुछ ना कुछ तो आपको दिखाना पड़ेगा. तो दिस इज हाउ यू कैन गॉज. तो आप देखो सॉफ्ट बैंक तो बाहर की हो गई, बट हाँ उस तरह से टाइगर ग्लोबल ये सारी, ये कहाँ पर इन्वेस्ट करें, वहाँ से आप ट्रेंड निकाल सकते हो. यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. ग्राउंड फ्लोर पे काम करने का और सेल्स करने का, बट वो इंडियंस को नहीं होता और इंडियंस को बहुत एज के बाद आता है वो, तो उस गैप को कैसे कम कर सकते हैं? देखो सबसे बढ़िया चीज़, आपको गैप कम करना है तो आप सबसे पहले, अजीब लगेगा बट दिस इज द रियलिटी, दिस इज हाउ अ लॉट ऑफ इंडियंस आर इम्प्रूविंग. स्टार्ट मेकिंग अटेम्प्ट्स टू इम्प्रेस द ऑपोजिट जेंडर. नहीं, सिंपल सी बात है. एग्री करते हो कि नहीं? हाँ देखो सब नहीं, दिस इज द रियलिटी. लेट्स बी रेशनल एंड प्रैक्टिकल. आप सिंपल से जब ये करते हो, मैंने इंग्लिश ही इसलिए सीखी थी, मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी, और जो मैंने बताया ना, मैं इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट इसलिए होना पड़ा कोई ऑप्शन नहीं था. द पॉइंट ऑन अ सीरियस नोट इज, जो मैंने एक चीज़ कही ना, हम लोगों को शर्मो हया के पर्दे हटा के क्या करना है, फना नहीं होना है यार. बेसिकली आपको बेशरम होना पड़ेगा. दिस इज द रियलिटी. एंड बेशरम का मतलब ये नहीं कि जाके किसी को भी चाटा मार दिया, ये सर ने बोला बेशरम होना है. नहीं नहीं, ये नहीं करना है. बेशरम इन द सेंस यू योरसेल्फ हैव टू टेक एन एफर्ट. तो आप सिंपल सी चीज़ कर सकते हैं. आपको सेलिंग करनी नहीं आती है, मुंबई में काफ़ी नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं. जस्ट गो, ट्राई टू स्पीक टू पीपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल. एंड द बेस्ट वे अगर आपको तो भी समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं मैं अभी भी डर रहा हूँ या डर रही हूँ, सिंपल है, स्टार्ट रीडिंग अ कपल ऑफ बुक्स ऑन दैट सब्जेक्ट. A book will have collective wisdom of 100 years if you are reading a good book. तो आपको क्या नहीं करना, आप उस किताब से सीख सकते हो. If you want to understand sales, learn from Brian Tracy, learn from Zig Ziglar. These are good people. They are prominent people. आप इनसे सीख सकते हो. If you want to understand about finance, Warren Buffett सर के shareholder meeting के letters पढ़ लो. If you want to understand about trading, try to understand what Paul Tudor Jones did. If you want to understand how to attack the economies, George Soros की किताबें पढ़ो. नहीं ऐसा मत करो, बट उस हिसाब से उनके एजेंडाज, उस हिसाब से आपको समझ में आएगा माइंडसेट क्या है. इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ टू रेज फंड्स, देयर आर कपल ऑफ बुक्स. अभी एक और इन्फ्लुएंसर है, उनने काफ़ी अच्छी किताब लिखी, सार्थक आई थिंक उनका नाम है, सार्थक आहूजा. सो फाउंडर्स, या सो बेसिकली उन्हें एक अच्छी किताब लिखी. तो अगर आपको समझना है कि भैया जैसे किसी ने पूछा कि फंड रेजिंग और ये सारी चीज़ें इंडियन कंटेक्स्ट में समझनी है, तो जस्ट गो एंड रीड. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 300 रुपये आप स्पेंड करोगे, यू विल लर्न समथिंग. सो द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड डूइंग सेल्स इज जस्ट 3 थिंग्स. पहला मैंने आपको बता दिया है, क्या करना है. नहीं वो नहीं अभी बताया मैंने. ठीक है. तो पहला वो हो गया. दूसरी चीज़ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप नेटवर्किंग इवेंट्स में जाओ, लोगों से बात करो. जिस तरह आपने उठ के सवाल पूछा, दैट इज, काफ़ी लोग डर के मारे सवाल ही नहीं पूछते हैं. अरे पूछ लो भैया, मौका मिला है, बार बार थोड़ी मिलेगा. और तीसरी चीज़ है आपका सिंपल सा है, बुक्स पढ़ो. दैट्स इट. महिमा, इफ she wants to add something. Yeah, I think the meetup thing is very good. There are a lot of apps जो मैं खुद यूज़ करती हूँ अभी भी. meetup apps है जहाँ पे नेटवर्किंग इवेंट्स, आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से नेटवर्किंग इवेंट्स होते रहते हैं. मुंबई में तो बहुत होते हैं, दैट फॉर श्योर आई नो. वीकेंड्स पे होते हैं, डू गो टू दैट. एंड सेकेंड, जब आपने बोला कि यूएस और इंडिया के बीच में गैप कम करना इन टर्म्स ऑफ दैट दे स्टार्ट वर्किंग एट अ वेरी यंग एज, आई जस्ट लाइक टू गिव यू एन एग्जाम्पल. द एडिटर दैट आई वर्क विथ is 11th standard guy, Abhishek. He's in school. Wow. And he's earning a lot from me, trust me. तो आप अगर कॉलेज में हो, when I said how many of you have earning sources, try कि आप अपने लिए अभी से एक अर्निंग सोर्स कहीं ना कहीं से बना सको. बहुत वेज है, ट्रस्ट मी. इफ़ यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग यू विल फाइंड सो मेनी वेज. एडिटिंग है, स्क्रिप्ट राइटिंग है, इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेंट क्रिएशन होती है. जिन लोगों ने बोला कि एक्सपीरियंस प्री हैंड चाहिए अगर आपको कॉन्टेंट क्रिएशन कैसे होता है, स्टार्ट राइटिंग फॉर समबडी एल्स. यू विल नो कैसे काम होता है, दे विल ऑल्सो टीच यू कैसे काम होता है, एंड इवेंचुअली फिर आप अपना खुद का भी शुरू कर पाओगे.
So that's how you start working. Yes. Sir, actually you two are in the same field, so I wanted to ask your thoughts on Akshat Srivastav actually. I follow his analysis. So, and why did SEBI means banned the finfluencers to do only one thing at a time? तो सबसे पहला क्वेश्चन, ही इज़ अ गुड फ्रेंड, और तो कंट्रोवर्सी क्यों करवाना चाहता है यार? नाइस पर्सन, नो मोर देन दैट. एक सिंपल सी, नो कमेंट्स. अच्छे हैं बट उसके आगे मैं और कुछ कमेंट्स नहीं दे सकता हूँ. द रीज़न इज, ये किसको कौन अच्छा लगेगा, दिस इज़ अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम. हो सकता है किसी को केस स्टडी और इन डेप्थ वाला अप्रोच पसंद है, तो दे माइट लाइक अ फ्यू इन्फ्लुएंसर्स. कुछ लोगों को मस्ती मजाक में सीखना पसंद है, तो उनको कोई इन्फ्लुएंसर पसंद आएगा. किसी को सिर्फ ब्लंट लोग पसंद है, उनको मैं पसंद आ जाऊँगा. फिर कुछ लोगों को पसंद आएगा कि जो एक थोड़े से अच्छे से प्रेजेंटेबल वे में प्रेजेंट करें, तो महिमा जी पसंद आ जाएंगे. तो उस हिसाब से ये एक बहुत वेरिएबल चीज़ है. आपको, अरे सिंपल सी बात है, ऑथेंटिसिटी आप सिंपल से आप जाके खुद ही फैक्ट्स चेक करो ना. लेट्स टेक एन एग्जांपल, 6-8 मंथ्स पहले किसी भी इन्फ्लुएंसर ने क्या बोला है, जस्ट गो एंड चेक आउट. गूगल तो है, आप वहाँ पर जाके चेकआउट करो. यू योरसेल्फ विल गेट एन आंसर. इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू शुड स्टार्ट जजिंग दैट इन्फ्लुएंसर राइट अवे. एंड कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, ये पहली चीज़ है नहीं, आधे यूट्यूब और ट्विटर और इंस्टा वालों ने फालतू बता दिया कि सेबी ने सबको बैन कर दिया है. नहीं है, वो एक आध को किया गया है, वो भी अलग अलग कंटेक्स्ट है. सो फॉर एग्जांपल अनरजिस्टर्ड एडवाइजरी हो गई, तो उसमें एक केस आया जिसको बैन किया गया. सेकेंड थिंग इज द रेगुलेटर इज गेटिंग स्ट्रिक्ट कंसिडरिंग कि हर दूसरा बंदा फाइनेंशियल एडवाइस देने लग गया है. जो बंदा 16 साल का है वो बता रहा है कि 25 साल अगर इन्वेस्ट करोगे तो ये होगा. अरे भाई 25 साल का तू तो हो जा. तो पॉइंट ये है कि एवरीबडी, तो कहीं ना कहीं सेबी वांट्स टू स्टॉप दोज थिंग्स. If you really ask my opinion around these things, yes, there has been a bit of stringent norms out there, which indeed is affecting a few influencers. Why? Indirectly. So, for example, Sir, were they actually pumping the stocks? They could be. They could be. They could be. हाँ, मैं controversy से दूर हूँ. But they could be. I don't know. But मैं इसमें एक simple सा एक perspective बता रहा हूँ. ये जो चीज़ हो रही है, जो भी हो रही है, द रेगुलेटर इज ट्राइंग टू कम अप विद अ फ्रेमवर्क, सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस कि कौन क्या करे, कौन नहीं करे. अब यार इंडिया में एक ब्रॉड सेंटिमेंट में बस बता देता हूँ. एक जनरल सेंटिमेंट रहता है, अ लॉट ऑफ कल्प्रिट्स डू गेट कॉट, अ लॉट ऑफ देम डोंट गेट कॉट. एट द सेम टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम्स, नॉट लॉट ऑफ टाइम्स, बट समटाइम्स इवन इनोसेंट वंस आर बीन गिवन सम रॉन्ग जजमेंट्स. दैट्स इट. कंट्रोवर्सी से दूर हूँ यार. आंसर बस यही है कि महिमा जी बताएंगी. नहीं, so when you talk about authenticity, I will just tell you one thing. जब अडानी के ऊपर हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था, you saw a lot of influencers promoting अडानी, right? मैंने प्रमोट नहीं किया था. Right? I'll tell you the ground reality. मेरे को भी कॉल आया था कि अडानी के बारे में अच्छा बोलो, इतने पैसे दूंगी. मुझे भी जस्ट आया था उसी के एक दिन पहले. उनको लगा मैं पॉजिटिव बनाऊंगा, नेगेटिव वीडियो बनाया था हिंडनबर्ग के दिन. Exactly. That is where you. अब आपको तो पता ही था कि हिंडनबर्ग का रिपोर्ट ऑन अडानी was not a positive one, right? So when you know that people are still talking positive about Adani, you know कहाँ पे authenticity lies. Simple. I'll not take names. क्या कर पाई यार, जब तक मित्रों का हाथ है कुछ नहीं होने वाला. Good evening, panel. Sir, what would be sir and ma'am, what would be a roadmap for a second year undergrad to become a hedge fund manager? Hedge fund manager. ये मैं नहीं ले. Okay. There's a follow-up question also. Just related, because it seems very seductive that the amount of influence these guys have on, like even like you took the name of George Soros, like he have destroyed the Bank of Britain. So yeah, it is really very
nice to be one. Powerful बनना है. Anyways, the point is very simple in India, straight to the point, setting up an hedge fund is a big hassle. That's why a lot of people, even though they want to set up a hedge fund, they go for an AIF model, model 3 or something. The only few notable hedge funds in our country is True Beacon, which is run by Nikhil Kamath. That too because he's coming with that sort of experience. भैया का support भी है, and plus money भी है, सब कुछ पता है. And just curiosity note, she mentioned in a creator's name Tanmay Bhatt. Tanmay Bhatt was one of their first clients also. मतलब तन्मय के पास अंधा पैसा है, सिंपल सी बात है. Because hedge fund does require you a decent amount of corpus. मतलब 6 करोड़ 12 करोड़ इस तरह होना चाहिए मैनेज करने के लिए देने के लिए. Now second is if you still want to set up a hedge fund, unfortunately in India the colleges, even the postgraduate college, are not directly going to give you an opportunity. They are going to give you investment banking opportunities काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी अच्छे investment bank हैं हमारी कंट्री में. In Bangalore, Mumbai, Delhi, you are having काफ़ी सारे बड़े बड़े के offices है, right from JP Morgan आप बोलो, Goldman Sachs बोलो, investment banking में. But हाँ बिल्कुल सारे हैं, मेरिल लिंच से लेके सब कुछ है. But if you really want to work into a decent hedge fund, the ideal roadmap could be one, after your graduation you need to go to maybe UK or US, do your studies from some of the prominent colleges out there, normal colleges नहीं है. वहाँ से निकलने के बाद जब आप place हो जाओगे, initially you won't become a hedge fund manager, but you would get maybe kind of an analyst or maybe somebody on the floor based on your preferences. Once you start working for 4 to 5 years, plus थोड़ी सी boss की जो भी है और हाँ जी बिल्कुल, ये सारी चीज़ें जब आप करोगे, एंड प्लस इफ़ यू हैव टैलेंट ऑफ एक्सप्लोरिंग अ फ्यू प्लेसेस, इफ़ यू हैव अ नीश, देन if you think of ठीक है you have managed certain funds under a particular corporate, then you can go outside and then you can say a particular investor कि boss मैं तेरा पैसा 21 दिन में तो नहीं but हाँ 21 महीने में डबल कर सकता हूँ. Then that investor based on your experience and all those things will put in the money. If you are able to have a track record, there would be funds flowing in, जिसमें कि आप फिर चार्ज करोगे 220 का रूल चलता है बाहर यूजुअली. 2% इज द मैनेजमेंट फी, 20% ऑन द प्रॉफिट शेयरिंग. अगर इंडिया में अगर आपको करना है, मैं सच बता दूं, 40,000 करोड़ इज एक्चुअली राइडिंग इनफॉर्मली, और सबसे ज़्यादा गुजरात और यहाँ पे चलता है, गुजरात, बड़ौदा और राजकोट में. So this is the reality. बहुत informally चलता है. This is beyond the rules and regulations. But if you want to stick by the rules and proper hedge fund अगर set करना है, तो भाई बाहर ही जाना पड़ेगा. Ideal places could be, Indians के लिए सबसे बढ़िया होता है सिंगापुर और दुबई. दुबई चले जाना, टैक्स भी बचता है. Something in the Masters of Finance and Economics, that is something which you need to do from an elite college, जिसकी फीस बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक किडनी शायद बेचना पड़ जाए. ये बंदा जॉर्ज सोरोस का फैन है. ये कैसा लाइक हो गया? मोदी. क्या है? मैं नहीं जानता. Fine. So sir, like BlackRock have Aladdin, so definitely Aladdin would make more money than a normal guys like us. Like me to know zero about finance and all the stuff. So sir, like with time अगर अपन graph draw करें, so obviously probability of Aladdin is making more money and we are not. So like is it really worth to like put that amount of money like that? यार सबसे पहले आपने अलादीन के बारे में सोचा है? डू यू नो अलादीन कितना पैसा लेता है? 40 करोड़ रुपए हैं यार. The point is, yes, it is worth, but it is worth to put 40 crores if you have asset under management of maybe 1,000 crore. As simple as that. तो we should go step by step, and yes, once you are into the hedge fund industry, there would be various, जैसे अभी आजकल का famous एक technology चल रही है जो पता नहीं इंडिया में कहाँ कब आएगी. So that is based on the face recognition and body language recognition. What they do is CEO खड़ा हुआ है, वो बात कर रहा है, 30 साल का डेटा को एनालाइज कर लेंगे. आपने अगर मुंह खोला ऐसे करके बिफोर अनाउंसिंग द क्वार्टर रिजल्ट, उतने में ऑर्डर प्लेस हो जाएंगे. बिकॉज वो डेटा पॉइंट्स ये ले लेगा मशीन लर्निंग और जो भी AI के बेसिस पे कि जब भी इनका CEO लास्ट 30 साल में जब भी मुंह खोलता है, इसके पहले बताने के पहले मार्केट गिर जाता है. This is how quickly they have actually come up to this thing. वो अगर बोलेगा आपने बोलते बोलते अगर ऐसा बॉडी लैंग्वेज कर लिया, इसका मतलब ऊपर जाएगा. This is how. तो वो तो हर जगह पे सिस्टम आएगा, बट you really need to wait. And मैं आपको बोलूँगा don't think so far because technologies will change. Go step by step. अगर पहले सही में if you want to get into hedge fund, unfortunately आपको स्वदेश को छोड़ना पड़ेगा.
a lot about the stock markets, and people around us are also showing a lot more interest in it. So I just wanted to ask you that are there any hot stocks that you prefer in this bull? मैं तो नहीं बता रही है. डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इंडिविजुअल, आई एम नॉट सपोज टू डिस्कस. सिंपल सा है, कुछ नहीं तो जो हर्षद मेहता ने क्या बोला था, इंडिया पे लगा दो, इंडेक्स फंड्स पे लगा दो यार, सिंपल सा है. हॉट कूल स्टॉक्स तो मेरे को पता नहीं है, गर्म होता हुआ कोई स्टॉक दिखा नहीं है मेरे को, तो सिंपल सी बात है. आई टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये वाले सवाल ना, हाँ मेरे को पता क्यूरियोसिटी होती है, लोग पूछना चाहते हैं. असली हॉट तो आज हुआ है भैया, जो मार्केट देख रहे हैं, 1000 पॉइंट गिर गया सेंसेक्स, एंड दिस इज माई रिकॉर्ड. वेन एवर आई एम इन मुंबई, जब भी घूमने आता हूँ मार्केट गिर जाता है. मत आया करो यार. मतलब सो started off well. हाँ, इट स्टार्टेड ऑफ वेल, क्योंकि मॉर्निंग तक मैं मुंबई में नहीं था ना. सो एंड दिस इज दिस थिंग, आई वॉज देयर इन अ पॉडकास्ट में, उनको वही बोल रहा हूँ, जस्ट ब्रेक लिया, मैंने बोला यार आज फिर बाहर हूँ, मुंबई हूँ और देखो गिर गया. सो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे को, हाँ इंस्टा पे फॉलो कर लो, देख लो मैं कब कब मुंबई आ रहा हूँ. हाँ तो मैं 11:30 के आसपास ही आया हूँ इधर, प्रॉपर 11 11:30. तो आपको एक चीज़ समझनी है, सिंपल सी बात है, हॉट स्टॉक्स और ये सब आप ना, इससे बेटर है जो महिमा जी ने बोला ना, आप अपनी स्टडी करो, आप एनालिसिस करो, अपना सीखो, वो ज़्यादा बेटर है, वो दैट वुड बी बेटर. और सिंपल सी बात ये याद रखना, ये किसी ने कही हुई है, ये इसको हम कहते हैं टिप लेना. टिप एक्चुअली में सिर्फ वेटर लेते हैं. ये थोड़ा डीप हो गया बट सो डोंट लुक फॉर दिस थिंग. अपनी एनालिसिस करो, और कुछ नहीं समझ में आया तो इंडेक्स फंड तो मैं बोल सकता हूँ आप लगा सकते हो, पर एक बार में सारा पैसा उधर मत लगाना, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, कूल. हाँ इधर इनके पास सवाल. हॉट स्टॉक्स तो मत बोलो, बट अपने एनालिसिस कैसे करें, मतलब गूगल पे क्या डाले, मतलब कौन से आर्टिकल्स पढ़े कि खुद का स्टॉक, इंडेक्स फंड, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड्स पिक कर सके. एक बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर महिमा जी आंसर देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. रेडी हो सुनने के लिए? अभिषेक करके चैनल को सब्सक्राइब करो. सब्सक्राइब्ड है सर, ऑलरेडी सब्सक्राइब है, तो बेल आइकन भी क्लिक कर लेना. अब महिमा जी बताएंगे. सो स्टॉक मूवमेंट्स यूजुअली दोनों चीज़ों से होते हैं, फंडामेंटल एंड टेक्निकल. सो इट डिपेंड्स कि आप किस साइड जा रहे हो. अगर लॉन्ग टर्म देख रहे हो आप हमेशा फंडामेंटल्स देखोगे, शॉर्ट टर्म देख रहे हो टेक्निकल देखोगे. आई वुड से कीप एन आई ऑन व्हाट न्यूज़ फ्लोज आर टेकिंग प्लेस. जैसे आज फॉर एग्जांपल वरुण बेवरेजेस वाज really up, it shot up to 17% I guess, because कल उसका एक न्यूज़ फ्लो आया था आफ्टर मार्केट सेइंग कि it is acquiring a company in South Africa जिसके 247 कुछ KFC चेन्स है, ठीक है. तो उसकी वजह से जस्ट बिकॉज ऑफ दैट न्यूज़ फ्लो वरुण बेवरेजेस जैसा स्टॉक आज 17% ऊपर था, राइट. सो अगर सिंगल डे जैसे देख रहे हो आप, अगर इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, जो मैं अगेन बोलूँगी कि बिना एक्सपीरियंस मत करो, बट न्यूज़ फ्लो पे ध्यान रखो, वन थिंग. एंड दूसरा, व्हेन यू से कि कहाँ से सीख सकते हो आप ये सब. जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने बहुत रिसेंटली, आई नॉट से कि मेरे बहुत साल का एक्सपीरियंस है, बट ज़ेरोधा का एक बहुत फ्री अच्छा एप्लीकेशन है वेरासिटी, जिस पे फंडामेंटल टेक्निकल बहुत बहुत अच्छे वे में एक्सप्लेन करा गया है कि व्हाट इट इज़, हाउ चार्ट पैटर्न्स टेक प्लेस. Go through that app once and you'll have an idea, an overall overview कि क्या कैसे चलता है. Thank you, ma'am. As we wrap up this enriching Q&A session, I would like to invite our secretaries Shriman and Priyanshu to present mementos to our esteemed speakers, Mr. Abhishek and CA Mahima, for their valuable contributions. Before we bid adieu to this memorable evening, I extend my sincere thanks to Mr. Abhishek and CA Mahima and each one of you all present here. Your presence has made Samvad 2.0 truly special. On the behalf of ESL ICT Mumbai, I express heartfelt gratitude. Keep the spirit of Samvad 2.0 alive, fostering continual dialogue and learning. Have a wonderful evening. Thank you so much.
We also have our newly appointed registrar sir here, Dr. Jogi sir. Can we have a round of applause for them, please? Thank you, sir, for coming to our event. Thank you so much, sir. Refreshments are being provided outside, please.